Pari sini players nang koi nai. Joto line up kai aingo mato thang na bagai. So, ladies and gentlemen, we're here at the Comoling Stadium today, and so it's the moment to celebrate the final match between West Vikings versus Dalai Antlers. Dr. Buk Song Pading guys in Tabuk Sini tournament Chang Nabakak Sing Tang Laitongo and Daba Haikeno Sini chief guest Tai Sini guest of honor Sing by Baksa Pai Shopaka Padi Sing Jotono Borno Lam Soglayan. Let's cheer up players no Kong Nay Dr. Clay Painabagay Mato Nising Lajak. And so let's welcome the players from both the team. The West Vikings and the Dalai Antlers. Media takes a look at the Fatsagai. Tàu tây buộc song Pari Sing Tini a live match Naimanai Dalai Antlers versus West Vikings ni Bakakti. Sini players of Joto Reading Lejak. Tai Borno Sini Cherry Rock Boy Scott play Lejak. Awa Haikano Tàu tây buộc song Tini ni o final match. Belai ke ho hom dodom kai muthang jang nai. Tai thang jang thangi punong jang nai oro kene team ni Bakakti kai. Pari kai. Tabuk sini chief guest Mandar Tamhane. Tayabahai keno sini guest of honor Juan Pedro Benali. Borok sung by Baksa Pai Sok Pajak. Borni logio sini TTAADC hapang ni CEM. Tai EMs. Tai MDC srobo sung by Baksa Pajak. Nor joto no belai ka hambay maro tamni hinba. Norok sungno belai ke support lai tong bagai te aba hai keno tinini o tournament belai ke nai to talk ang nai nyang kha khayo borok tabuk players no malai great klai mani yagulo football kick off klai tinini tournament no chengna bakak sing thang lai tong ta te buk so. And so ladies and gentlemen, we are here and the wait is over. The match between Dalai Antlers and the West Vikings will be live showcased at Comoling Stadium today. You can watch us live on TTAADC's official Facebook handle. Dr. Buksong Padisung Sini, Guni team ni bagino sung jotono cherak play lene. Tamni hinba Tinino match belai ke nai tok nai belai ke breathtaking matching nai nang khakayo tam nin ba kuni team no belai ke strong nang khakayo tai awa ha no kuni team no prepared for the final match. Ang Milton Deberman norni English tai Kokboro commentator ani logio tongo Soromita Bomik Hindi commentator tai logio tongo Mithun Das, Bobo Hindi commentator. Let's welcome the two Hindi commentator amongst us this afternoon. And so, what's the take of the match today? What's going to happen? Let's first of all see the football kickoff. And Taute Busong ang kakayo nor joto no tini belai ke excited. And there we go. Belai ka hambay. Next goalkeeper. Mithun and Soromita. Let's talk a little bit about the previous match. Of both the team, West Vikings and Dalai Antlers. Both the team have been really strong on the ground. What's your take on their kind of a gameplay?
बिफोर प्रोसीडिंग लाइक ये बात करने से पहले मुझे लगता है सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए हमारी ऑडियंस की। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं इन दिस TTAADC प्रेजेंस सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट खुलम खा। आज के इस खूबसूरत से शाम में हम सब जुड़ गए हैं हमारे बेहतरीन दो टीम्स के साथ। जी हाँ, जिनमें से एक टीम के पास आज रहेगी चैंपियंस की वो ट्रॉफी जिसका इंतजार था लगभग इतने मैचों से। हमारे ऑलमोस्ट 20 मैच हुए जिसमें से कुछ चुनिंदे अमेजिंग टीम्स उभर कर आए सेमीफिनाले तक। सेमीफिनाले के 2 मैचेस एंड आज हमारे पास है हमारे 2 फाइनल टीम्स, धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स। आई मस्ट से कि आज का ये जो धुआंधार मैच होने वाला है मिथुन जी, इट विल बी ग्रेट। जैसे ऑडियंस है हमारे पास चकाचक, वैसे ही मौसम है चकाचक। व्हाट डू यू से? नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, खुलम खा खुमलंग। बहुत मजा आएगा आज क्योंकि दोनों ही टीमें जबरदस्त है। वेस्ट वाइकिंग्स बहुत अच्छा मैच खेली है अब तक, बहुत सारे गोल इनके नाम है और उनके जो ओपोनेंट धलाई एंटलर्स सोरोमिता, उनके गोल्स कम है। आज ये देखना है कि धलाई एंटलर्स किस स्ट्रेटेजी से अंदर खेलती है क्योंकि जरूरत है उनका स्ट्रेटेजी की। उनका डिफेंस अच्छा होना चाहिए, स्ट्राइकर और इनका जो लेफ्ट विंग और राइट विंग है वो बढ़िया खेलेगी तो ही ये टीम को आगे लेके जा पाएगी। क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स जो है वो एंड में वेल करते हैं। लास्ट के 2-3 मिनट अगर उनको मिल गए, आपने खुला छोड़ दिया तो शेर है, सीधा गोल पोस्ट के अंदर गोल डाल देंगे। तो आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ी क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। देखिए अच्छी टीम है गोमती ग्लेडिएटर जिसका करीब 13 गोल्स थे लेकिन वो टीम बाहर हो गई। लेकिन वहां पर वेस्ट वाइकिंग्स देखिए कितना टफ गेम के साथ अंदर आई है और आज इस मैदान पे 2 फाइनलिस्ट आपस में भिड़ेंगे, धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स। वही अगर मैं देखूं मिथुन जी, आपने जैसे कि कहा धलाई एंटलर्स को एक स्ट्रेटजी के साथ आना पड़ेगा, वेस्ट वाइकिंग्स को भी थोड़ा आज अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आज अगर आप आखिरी मूवमेंट के लिए वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा शॉट मिस करें। कहीं ना कहीं आप देखें फैंस जो है उनके अंदर एक टेंशन आ जाती है। वहीं अगर हम देखें कि धलाई एंटलर्स लगभग 3 मैच जीते हैं बिकॉज उनके पास थोड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी थी, एक उनका टाई रहा है। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स का अगर हम पूरा स्कोरबोर्ड देखें तो उनमें उन्होंने 2 जीते थे मैचेस, एक वह हार गए थे किसी कारणवश एंड एक में वह टाई रहा था। तो आज भिड़ाव जो होगा मुझे लगता है टक्कर का होगा एंड कहीं ना कहीं आज वेस्ट वाइकिंग्स को फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थोड़ा और जज्बा लगाना है, थोड़ा और जोर लगाना है क्योंकि आज है ग्रैंड फिनाले, आज कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। जी बिल्कुल, देखियो एक मैच उनका ड्रॉ था और उनका जो बाकी मैचेस थे जिनके साथ वो एक में ही सिमट गया था, 1-0 1-0 1-0 में। तो आज उनको वो स्ट्रेटेजी तो अभी आप रख ही लो क्योंकि जो ऑपोजिट टीम है वेस्ट वाइकिंग्स बहुत खतरनाक टीम है। अगर उनको डिफेंड करना है तो आपको अच्छा प्रदर्शन आज खेलना पड़ेगा इस मैदान पर, नहीं तो आपके हाथ में भी कुछ नहीं आएगा। तो स्ट्रेटेजी और कोच के साथ बैठ के बात कीजिए कि किस तरह से ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आपके हाथ लगे तो कैसे लगे। देखिए मैच आज बहुत ज्यादा रोमांचक होने वाला है, ये मुझे कोई डाउट नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि आज का ये मैच बहुत ज्यादा धुआंधार होने वाला है क्योंकि हमारे साथ 2 बेहतरीन टीम्स है, धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स। दोनों ही अपने रणनीति में माहिर हैं। एक अगर वेस्ट वाइकिंग्स को देखें तो लास्ट मिनट में कैसे पूरा गेम चेंज करते हैं, कोई इनसे सीखे। वही धलाई एंटलर्स के जो रणनीति है फ्रॉम द फर्स्ट टू द एंड, जिस तरह से वे खेलते हैं, जो बॉन्डिंग है उनके प्लेयर्स की, दैट्स वंडरफुल। तो ये जो मैच है ये एक भिड़ाव होने वाला है 2 शेरों के बीच। देखना ये है कि कौन किसको निचोड़ के कौन किसमें पंजा लड़ा कर ये चैंपियंस का ट्रॉफी ले जाता है। ओके, एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए, प्लीज दोनों टीम्स वेस्ट वाइकिंग्स एंड धलाई एंटलर्स आपके सिर्फ ऑफिशियल्स ही अंदर रहेंगे और बाकी प्लीज आप उस तरफ चले जाइए मंच की तरफ, वहां जाके अपना आसन ग्रहण करें। प्लीज प्लेयर्स एंड स्टाफ वही रहेंगे,
मैं दोनों टीमों के लिए बोल रहा हूं, धलाई एंटलर्स एंड वेस्ट वाइकिंग्स। तो शुरू किया जाए क्या मैच? ऑडियंस थोड़ी तालियां तो होनी चाहिए एटलीस्ट, थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी। अमेजिंग, जस्ट देखिए कितना बेहतरीन ऑडियंस है आज। एंड आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड फॉर द मैच। डेफिनेटली आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वेस्ट वाइकिंग्स वर्सेस धलाई एंटलर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ही क्षण में हमारा ये मैच ग्रैंड फिनाले शुरू होने जा रहा है। सो आई रिक्वेस्ट अपनी कुर्सी की बेटी बांध लीजिए, कुछ भी हो जाए मत हिलिए, क्योंकि आज है ग्रैंड फिनाले। मजा तो वहां से आएगा, वो जो दर्शक छत पर हैं। देखिए भाई साहब, थोड़ा ध्यान रखे, हाँ, सिर्फ गोल पे ध्यान होना चाहिए, नीचे नहीं। आराम से मैच देखेंगे। ये दर्शक आज प्रेशर क्रिएट करेंगे दोनों टीम पर, क्योंकि दर्शक अगर होते मैदान पे थोड़ा तो प्रेशर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके फैंस हैं वहां पर, चाहे वो धलाई हो चाहे वो वेस्ट वाइकिंग्स हो, प्रेशर वहीं से क्रिएट होता है। बहुत उम्मीदें लेकर आए हैं आज दर्शकगण। जी बिल्कुल, और ये प्रेशर अगर यहां होगा तो उनको खेलना है अपने फैंस के लिए। तो फिर दो शेर आपस में महायुद्ध के लिए जंग में है तैयार। वेस्ट वाइकिंग्स वर्सेस धलाई एंटलर्स। चलिए थाम लीजिए दिल की धड़कन को, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स करेंगे किक ऑफ, उसके साथ मैच शुरू होगा। बेहतरीन टीम दोनों ही आपस में प्लेयर को किस तरह से संजोते हुए सजाते हुए मैदान के चारों तरफ रणनीति के साथ, क्योंकि आज ये खिताब के आखिरी पल है। ये सेशन का लास्ट मैच है और ये लीग को किस तरह से खूबसूरत बनाते हैं दोनों टीमें, देखने वाली बात होगी। 90 मिनट्स किसके पक्ष में जाती है। चलिए मैदान पर हमारे रेफरी शिव ज्योति चक्रवर्ती, जो मेन रेफरी हैं, सुशील देवबर्मा, नंद नारायण जमातिया और नगेंद्र नारायण जमातिया। नगेंद्र जी, आप जितने भी रेफरी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे मैचेस आप लोग ने यहाँ पर एक साथ खेल की शुरुआत अच्छी पास देते हुए यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स छोटे छोटे पासेस, ग्राउंड शॉट्स खेलते हुए यहां पर किस तरह से नेथनियल और एंथम भी इस मैच को आगे ले जाते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि आज देखना पड़ेगा उसके एक प्लेयर हैं विकास देवबर्मा, किस तरह से आज रणनीति अपनाते हैं। नेथनियल को भी देखना पड़ेगा आज। चलिए ये गिरते पड़ते खिलाड़ी, ज्यादा चोट नहीं आनी चाहिए क्योंकि आज फाइनल है। थोड़ी सी संभल के खेलनी चाहिए यहां पर, क्योंकि आपको उसी तरह से रणनीति के साथ ही अंदर भेजा गया है। धमाकों के साथ शुरुआत यहां पर, अंदर भी धमाका और बाहर भी धमाका। ये होती है रणनीति खेल की। पहुंच गए थे करीब करीब गोल पोस्ट के पास। देखिए धलाई, डिफेंस अच्छा होना चाहिए धलाई का, क्योंकि हमें मालूम है वेस्ट वाइकिंग्स के टीम बहुत ही खतरनाक है। एकदम लास्ट पे एकदम पूरा पासा पलट देते हैं। यहां पर कॉर्नर आउट थ्रो, क्या मौका को ले पाएगी धलाई, देखने वाली बात है। यहां पर बहुत ही बढ़िया लंबा शॉट यहां पर एंथम्बी द्वारा, बढ़िया फुटवर्क का यूज यहां पर, लेकिन गोल पोस्ट पे तैयार है। इसी तरह की रणनीति के साथ आपको खेलना होगा।
वेस्ट वाइकिंग्स सपन आकांक्षु देवबर्मा गोलकीपर है। लंबा शॉट यहां पर एंड द्वारा यहां पर नेथनियल मौजूद है। बढ़िया पास यहां पर, क्या मौका ले पाएंगे? धलाई कॉर्नर मिला है यहां पर वेस्ट वाइकिंग्स को। ये कॉर्नर का शोरूम ही था, अगर सही से इस्तेमाल होगा तो फिर वहां पर दो खतरनाक प्लेयर है, 3-3 पासा कभी पलट सकता है। मौका मत दीजिए बस। जी बिल्कुल, आज मौके का बहुत बड़ा रोल है कह सकते हैं। जहां अपॉर्चुनिटी आपने ले ली वहीं एक गोल। देखिए कॉर्नर मतलब ही है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को सही इस्तेमाल कीजिए इस तरह से कि आपका ही पहले गोल हो। और देखिए आज है फिनाले, तो आज के इस पहले ही 5-6 मिनटों में अगर एक गोल हो जाता है तो ये बहुत बड़ा, और यहाँ नहीं, ये गोल नहीं हो पाया। कोशिश अच्छी थी मिथुन जी, कोशिश अच्छी थी, पर यहाँ गोल नहीं हो पाया। देखिए यही बात होती है, ये वो थोड़ा सा सेंटीमीटर का कुछ डिफरेंस, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन का डिफरेंस और पूरा बाजी पलट जाता है। यहाँ अच्छी कोशिश थी 16 नंबर जर्सी रकित देवबर्मा के द्वारा, पर व्यर्थ गई। कोई बात नहीं, ये समय है आपको कि आप थोड़ा अपने आप को वार्म अप हो गया है, बट स्टिल इट्स लाइक 5 to 6 मिनट्स आपको सोचना है, दिखना है और इसके बाद फिर जड़ देना है। एनी हाउ इसके बाद फिर आपको गोल्स चाहिए, क्योंकि आज दोनों ही टीम्स मेरे हिसाब से अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कॉर्नर मिला था वहां पर, नेथनियल ने अच्छा शॉट खेला था लेकिन उसका भरपूर यूज नहीं किया गया। नेथनियल अगर आप मौका देंगे तो चूकेंगे नहीं। ढलाई जबरदस्त यहां पर अपना टीम एफर्ट दिखाते हुए एंटलर्स। क्या वो गर्जना जो होती है आज उस टीम की, वो देखने को मिलती है, जो हिरन की गर्जन होती है ना गुस्से में, वो सिंह के साथ, वो धारणापन देखना पड़ेगा धलाई का। आप स्ट्राइकर को देखिए ना, एरन रियांग हमेशा से जब भी उनके पास बॉल आता है वो छोड़ते नहीं हैं। जो आपने गर्जन कहा, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, उसका एक्चुअल डेफिनेशन अगर हम देखें तो एरन परफेक्ट है उस डेफिनेशन के लिए। एक भी बॉल वे छोड़ते नहीं है। एरन और डेविड रियांग जो है, एरन रियांग और डेविड रियांग दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन रहा मैच में, अच्छा खेले, अच्छे पासेस दिए हैं, गोल भी किया है। बिल्कुल, और ये कॉम्बिनेशन रहना चाहिए कि इसी तरह से आप एक टीम को आगे ले जाएंगे। अगर फाइनल जीतना है ना, आपको आपस में छोटे छोटे पासेस और ग्राउंड शॉट्स में लेके जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये आपने एकदम सही कहा है। पासेस आपको छोटे छोटे लेने हैं, और स्पेशली जब आप एकदम स्टार्टिंग में हैं, आपका अभी स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स हैं, सो यू हैव टू वर्क हार्ड एंड थोड़ा ध्यान से आपको खेलना है, क्योंकि बहुत सारे गोल्स अभी फिलहाल ढलाई एंटलर्स को चाहिए कि आज जो है गोल्स के ऊपर गोल्स करें, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स आखिरी मिनटों में भी चौंका देते हैं हमें। तो 1 या 2 गोल का अगर डिफरेंस रहेगा तब भी शायद वेस्ट वाइकिंग से जीतने के चांसेस रहेंगे। देखिए जरा पासेस कितने बढ़िया हो रहे हैं। देखिए किरी जस्टोम एंथेम्पी पे नजर रखिएगा किस तरह का खेलते हो। मौका फिर से यहाँ पर वेस्ट वाइकिंग्स को, लेकिन ये बॉल तो सीमा रेखा से बाहर, यहाँ पर आउट हो गया। धलाई के 10 नंबर के खिलाड़ी बिलाश लेकर गए थे उसको, बट हो नहीं पाया। देखिए यही तो है कोऑर्डिनेशन, लेकिन ये टीम को आप हल्के मत लीजिए, ये कभी भी कुछ भी कर सकती है। कर सकते, वो जज्बा रखते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं अभी अच्छी कोशिश चल रही है दोनों टीम्स के द्वारा। देखिए बात अब ये है कि पहले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। अभी ऑलमोस्ट 5 मिनट समाप्त हो गए हैं। इन 5 मिनटों के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे वैसे दोनों ही टीम से प्रेशर पड़ेगा कि उनको अभी गोल लेने ही हैं। तो बेटर पहले ही, समय के पहले ही वह गोल्स अभी ले ले तो इट्स गुड। मिल्टन जी, इस 5 मिनट के खेल में दोनों ही टीम, ये आप देखिए जरा, 15 नंबर के खिलाड़ी वेस्ट वाइकिंग्स के किर्जस टॉम, जो मिथुन जी बता रहे थे, उनके हाथ में बॉल, उनके पैरों में जब भी बॉल जाता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अच्छे से उनके पासेस से कभी ना कभी गोल हो ही जाता है। He is one of the very good player. What do you want to say about both the teams, how they are doing up to now? Both the teams have been doing really awesome so far. It's been about 6 minutes past, and both the teams really attacking each other. But West Vikings probably taking the lead as of now, and so it's really awesome to see the match like this in a place like Comaling Stadium today. And the weather looks really awesome. The players look really strong, and
ready for the final. And so it's a beautiful match so far. Taute busong norok nugui tongoro tini Khumlung Stadium belai ke naito tok kaisa thungmung norok nugui tongo taya bai keno belai ke naito tok thungmung kani bakakti West Vikings versus Dalai Antlers ni bakakti ke sia sabo paino tini tam kheba abono naina nangnai sabo puila score klai match no lead play thangi tong abono naina nangnai tai abai keno taute busong yellow card of the match today. And so taute busong awahai thungmung belai ke rare sini bagai tam ni ba awahai kaisa initiative TTAADC ni hapang ni bakak tikai je initiative na zamani awo sikla chalai ni bagai belai ke kaham angkha khayo nor jotono tini khatam khajang jak norok match fully nor naiman yangka aingo nor ni LED screen tong arbo naiman nai tai gana khlai deksha norok naiman nai boro bahai cholitong tai pari nailen replay bahai ka ro thajingo dokuman lekha bahai ke klai lekha kanai no actually a match Bilas Tiberma aro klai duk klai kha tai bahai keno Dalai Antlers on the Bakakti ke Shanta Joy Riang dokuman ka piaba Matt team aro thangai borno recover klaika aun bagai Matt team borno bele ka hambai tai tirini je match ni officials referees rono sing bele ke hambari kulba tam nihin ba bele ke talented international national level of work mathangi phajak tai aba haikeno sini je tirini match ni officials ro bele ke active and nor kakai mano de borok tini kaham no decision bor nor rimana hinai. And so tabugoro sana thanga kai kene team ni bakakti no belai ke strong match mathang jagi tongoro kene team ni bakakti tai aba hai keno West Vikings tabuk attack play tongo tai kakayo kaham no tournament ang nai ni tini taw tai busong pari sing Hindi commentary book sing kanalai nai ani logi tongo Mithun Das tai logi tongo Soromita Bhumik borok ke Hindi commentary klai ang norong nibas kango Milton De Burma ang English tai kokbrok by commentary klai tong bele kaham bai taute busong nor nai tongo match between the Dalai Antlers versus West Vikings live nor nai man nai TTAADC ni official page. देखिए यहाँ बढ़िया पासेस अभी फिलहाल हो रहे हैं पर बात वही है कि जिसके खाते में पहले गोल जाएगा वही किसी ना किसी तरह से आगे रह पाएंगे क्योंकि अभी गेम ऐसा है कि धलाई एंटलर्स उनको भी जाना गया है वह अच्छा गोल ले सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजी से वहीं वेस्ट वाइकिंग्स आखिरी मिनट पे पूरा गेम चेंज कर देते हैं गेम चेंजर जिनको नाम दिया गया है हमारे फैंस के द्वारा। तो यहाँ आज देखना ये है कि कौन एक्चुअल में ये पूरा गेम बदल के रख देंगे ये पूरा चेंज करके रख देंगे। देखिए अभी अगर पूरा रिकॉर्ड देखें वेस्ट वाइकिंग्स का तो उनके दो जीत थे जहां पहला जो हमारा मैच हुआ था सिपाही जिला टाइगर्स वर्सेस वेस्ट वाइकिंग वहां 0-1 से खुमलुंग स्टेडियम में ही वह जीते थे। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स का जो दूसरा मैच था जो हुआ था जो गोमती टस्कर्स के अगेंस्ट में हुआ था उसमें भी वेस्ट वाइकिंग्स जीते थे 1-3 से। तो यहाँ अच्छा गेम हुआ था ये भी खुमलुंग में ही हुआ था। तो वेस्ट वाइकिंग्स का अच्छा एक रिकॉर्ड है खुमलुंग में खेलने का अच्छा खेल रहे हैं वह अभी तक। साथ ही साथ वेस्ट वाइकिंग्स अगर हम तीसरा मैच देखें तो वो टाई हो गया था 3-3 अगेंस्ट ऊनाकोटी चैलेंजर्स जो कि लेफुंगा में हुआ था। एंड वही अगर हम देखें वेस्ट वाइकिंग्स का लास्ट जो मैच हुआ था वो हुआ था 1-3 से वह हार गए थे साउथ लायंस से जो कि मांदाई में हुआ था। तो जब सेमीफाइनल्स में भी उन्होंने इतना अच्छा किया कि गोमती ग्लेडिएटर्स जैसे बेहतरीन एक टीम को टक्कर देकर वह जीते। तो इट्स समथिंग अमेजिंग जो हमें मानना पड़ेगा प्रेज करना पड़ेगा वेस्ट वाइकिंग्स को। अभी देखिए आप यहाँ जो शॉट्स दिए जा रहे हैं अभी ये शॉट शायद जर्सी नंबर 10 के पास आ सकती है ये शॉट। आप देखिए जरा सैम्यूल है यहाँ तैनात की कब उनके पास ये बॉल आएगा। ये सैम्यूल को अगर हम देख ले नेथनियल को अगर हम देख ले केजे स्टॉर्म को अगर हम देख ले दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। यहाँ एक अच्छी कोशिश है और क्या ये नहीं ओह माय गॉड दैट वाज टू क्लोज। धलाई एंटलर्स
यू डिड अ ग्रेट जॉब। एबी के द्वारा एक बहुत 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 अच्छी कोशिश, पर ये गोल नहीं हो पाया। Actually, talking of David Riang, he's been one of the top player of the Dalai Antlers, and he's in the left wing, and so David basically have been the star player of Dalai Antlers so far, and he's been doing really awesome job, and in all the matches, he's been the top scorer for the Dalai Antlers. He is leading the match, and so. It is needless to say that Dalai Antlers really really strong, and the way they have played in the semi-finals as well, it's really appreciable. And so talking of the West Vikings also have some of the top players like Vishal Devarma, also Pitus, Shubham, Kang Shu and others also, and Tambe, James Tambo. These are some of the players, some of the best players of the West Vikings, and so they really have been doing awesome matches in the ground, and so and Tambe has been one of the top player, the midfielder out there from the part of the West Vikings, and so when we talk of such players in team of West Vikings, they really are some of the best players, strong players, and they've been scoring at least one or two in every matches that they have been playing. So it is always important to praise these players for the kind of match that they've been playing so far at TSL 2024-25. What do initiative by the TTAADC officials and the government that has taken initiative for the youngsters, and I'm sure there will be many new youngsters, new players that will come up from these matches, and they will be able to play in several other matches in the national and international football tournament as well. And so, Taute Bosong Norno Tam Sanai, Belaike Katong Togo Tam Nimba, TTADC ni Hapang, Sino Belaike, Nazo Kaisa tournament, Super League, Sino Ramabagi, our Haikano players, Kuni Bukangino Belay Belaike, Borno, sing appreciate Canan Nawatam Nimba, Rajnikanta Tripura, David Riang, Ranjit Tripura, Tai Stephen Paul Darlong. Overall, Belay Beleke, top player Bongni team ni Bukhaktike, Dalai Antlers ni Bukhaktike. They have Haikano Upon Kumar Halam. Borok, Mane prime match no Borok, Kaisa score play Borok, Borni team no lead play Jango, Abokai Dalai Antlers ni Bukhaktike, Tabuk Salene. West Vikings only. West Vikings only were some of the top players, Jaman Bilaj and the captain Budia, and also Shubham and Tambe, James Tambo, Tai Soa. Overall, some of the top players, Boni team Ningi, West Vikings Ningi, and so Borno Singh, Jeffro Mano, Afro Singh appreciate Canano, and the West Vikings looks really strong in the defense, and so they've been tackling almost all the balls that have been sent towards them. And Dalai Antlers are really struggling to take the balls towards the tee box so far. And so belai belai ka hambai tawte busum nor singo belai belai ke support kai tamo ba omahai ke kaise tournament nong ni bagai sing tui manka. हेलो जी बिल्कुल मिल्टन जी, जिस तरह के खिलाड़ियों का अपन नाम लिया है, सभी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं यहाँ पर, लेकिन आज अंतिम घड़ी है और दोनों ही टीम को उस तरह का प्रदर्शन करना पड़ेगा कि बाहर उनके फैंस बैठे हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति कौन करती है आज ये देखना पड़ेगा। एरॉन डेबिट पे अच्छे प्लेयर है, रणजीत त्रिपुरा, पता नहीं आज इनको रखा क्यों एक को बाहर यहाँ पर, लेकिन देखिए मिडफील्ड पे खेल रहे हैं राजन कांत त्रिपुरा। तो ये बढ़िया एक उमदा आइडिया है यहाँ पर टीम का, जो यहाँ पर फॉर्मेशन बिठाया गया है 4-4 का, वो फॉर्मेशन बढ़िया है। फुटबॉल में आपको होता है फॉर्मेशन, अगर आप अच्छा फॉर्मेशन बिठाते हैं तो वहाँ पर डिफेंस स्ट्राइकर फिर साइड बैक जो होते हैं उनके लिए अच्छा रहता है खेलना।
अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन वहीं से देखिए किस तरह से उनका डिफेंस भी देखिए आप वेस्ट वाइकिंग्स का। आज उसी रणनीति के साथ उतरे भी हैं, क्योंकि दोनों टीम को आज अगर खेलना है तो डिफेंस तगड़ा करना पड़ेगा। गोलकीपर की बात कर रहा था आकांक्षु देवर्मा है वेस्ट वाइकिंग्स के, जबरदस्त उस टाइम जो उन्होंने गोल रोका ना, काबिले तारीफ, 100/100 मिलेंगे उनको। देखिए किस तरह से यहाँ पर अभी देखना है किस तरह की रणनीति ये दोनों टीम जो आगे खेलती है, दोनों प्लेयर एरन और डेविड, एक स्ट्राइकर है और एक बैक लेफ्ट है। मौका बना था लेकिन कोई चांस नहीं मिला यहाँ पर। वेस्ट वाइकिंग्स पहली जो ख्वाही के साथ था मैच उनका 1-0 से जीते थे, वो आज करते 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 आज ये फाइनल खेल रहे हैं। यही टीम है, यही टीम का एक मैनेजमेंट है। आपने अच्छी टीम को हराया, गोमती ग्लेडिएटर शायद हैमिल्टन जी, उसी टीम को हराया जिसके नाम पे 13 गोल है। 13 गोल किया है उस टीम ने, Correct. और उसी टीम को हरा के आज फाइनल खेल रहे हैं, वो भी पेनल्टी में। ड्रॉ हो गया था मैच, अंतिम घड़ी में पेनल्टी मिला और उस पर आप जीत गए। लेकिन उसी दिन अगर वो अंतिम के 2-3 मिनट चांस मिल जाता तो मामला गड़बड़ हो सकता था। यहां पर बहुत ही अच्छा शॉट था, लेकिन नैथनियल साइड बूट हिट था, अच्छा शॉट था, जगह पे नहीं गिरा, नहीं तो भी कुछ मामला गड़बड़ हो सकता था। नैथनियल आना थे, बहुत ही अच्छा अपने स्पाइक के यूज करते हैं यहाँ पर। उस दिन भी हमने देखा था किस तरह से अंतिम घड़ी में जो ड्रॉ हुआ था मैच, किस तरह से एकदम डी बॉक्स के कोने से उन्होंने हल्के से छू के वो गोल किया था। नैथनियल किरीजेस्टॉम, देखिए नैथनियल ने जो ये माने मिडफील्ड पकड़ के रखा है ना स्ट्राइकर का, वो जबरदस्त। बड़े शॉट्स यहाँ पर देखिए, ये बड़े शॉट्स बहुत जरूरी हैं अभी अगर बात करें धलाई के लिए, क्योंकि आपको अगर डिफेंस करना है तो बड़े शॉट डिफेंस की तरफ से खेलना पड़ेगा, उसी से रोकिए आप, क्योंकि आप अभी जोखिम नहीं उठा सकते, रिस्क नहीं ले सकते हो वहां पर। और अपने ओपोनेंट को वेस्ट वाइकिंग्स को आप अपॉर्चुनिटी देंगे तो फायदा ले लेंगे। देखना पड़ेगा आज क्या रणनीति है यहाँ पर बिलास देवर्मा की, बीरू देवर्मा की, ये सब देखने वाली बात होगी। मौका नैथनियल, बहुत अच्छा डिफेंस, बूटा का हुक, कॉर्नर मिलेगा, बहुत ही अच्छा डिफेंस। लेकिन ये कॉर्नर कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। Corner shots can be really dangerous for the defending team, because there are many good shooters out there from the part of the West Vikings, and so it's really important that you make your first score and put the score on the scoreboard, so you can actually make a lot of pressure out there. And this could have been a goal, but there's been a call from the linesman out there, and it's at offside. तो यहाँ अभी जिस पड़ाव पे है मैच, इट्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड है। किसको क्या, कौन पहले गोल करेगा, कौन जीत सकता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में हम नहीं बोल सकते कि कौन जीत सकता है। अभी तक कोई गोल नहीं है किसी भी खाते में, किसी भी टीम के खाते में। अगर हम देखें कि पॉइंट वाइज कौन अच्छे में थे, कौन अच्छे पोजीशन में थे, वो वेस्ट वाइकिंग्स थे। एंड अगर हम देखें अभी तक का जो पोजीशन है, वेस्ट वाइकिंग्स मैक्सिमम टाइम में डी बॉक्स तक बॉल को लेकर जा पा रहे हैं, गेंद को लेकर जा पा रहे हैं। वहीं धलाई एंटलर्स अभी थोड़ा चुप है, किसी कारणवश शायद उनका वो जज्बा, वो स्ट्रैटेजी, वो परफॉर्मेंस हम अभी तक नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ देखिए अच्छा कोशिश चल रहा है, और ये क्या जाएगा, ये आया है एक बार फिर से बिलाश के पास, क्या ये नहीं, अरे यहाँ क्या गोल, कहा था मैंने कि थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा सेंटीमीटर भी बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आ सकता है। बिलाश की अच्छी कोशिश, यहाँ मौका था जर्सी नंबर, यहाँ एक बार फिर से चूक, कैसे, आप जरा सोचिए मिथुन जी, मिल्टन जी, कि गलती एक बार होती है, दूसरी बार होती है, उसी जगह में तीसरी बार कैसे गलती हो सकती है।
ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका ये मैच देख के, क्योंकि आपकी बीपी हाई होने वाली है और ये हाई लेवल का मैच भी है आज। ग्रैंड फिनाले है आज, तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ा हुआ रहेगा ही, पर इतना बढ़ा हुआ है कि कैलकुलेशन सही नहीं हो रहा। जी आपका हार्ट बीट भी ब्लॉक हो सकता है, ऐसा मैच है आज। यहाँ पर नेथनियल पे नजर रहेगी और बिलाश देबर्मा पर। फॉर अ पर्टिकुलर सेकेंड आई थॉट कि मिनी हार्ट अटैक मुझे आ गया है कि अब होगा, हो जाएगा, पर नहीं हुआ। मौके दर मौके आज वेस्ट वाइकिंग्स को मिले वहां पर। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वेस्ट वाइकिंग्स भी प्रेशर में है, क्योंकि वहां पर गोल पोस्ट से मिस होती नहीं है ज्यादातर। बात ग्रैंड फिनाले की है, कैसे प्रेशर ना, आप देखिए जरा कितने बार अच्छी, यहाँ अच्छे पासेस, देखिए यहाँ अच्छे पासेस है बिलाश के द्वारा, पर बिलाश छीनने की कोशिश में 11 नंबर के खिलाड़ी हमारे धलाई एंटलर्स के डेविड रियांग से, पर फिर से एक बार चूक। हल्की कद के खिलाड़ी है बिलाश देबर्मा, लेकिन एनर्जी लेवल देखिए इनका, ऐसा लगता है ग्लूकोज की सारी बोतल चढ़ा के आए हैं। बहुत एनर्जी है इनमें, बिल्कुल खाना नहीं और खाया है आज। मौका गवाते नहीं है, सही लेवल पे करते हैं, सही पास देते हैं। बट वही पास अगर सही तरह से गोल बन जाए तो क्या बुरा है। आप देखिए रिप्ले जरा देखिए, कितना अच्छा था, कोशिश बढ़िया थी, पर इतने ऊपर से गया वो गेंद कि दिखाई भी नहीं दिया। देखिए वो पास नेथनियल और क्रिस एस्टम को देख के देते हैं, क्योंकि वो तो अच्छे प्लेयर है और डीप बॉक्स के अंदर इस तरह से अपना बूट का यूज करके उसको कन्वर्ट करते हैं। ये हैंडबॉल है, शायद ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। देखते रेफरी मिल शिपू गया ज्योति चक्रवर्ती मौका का- पाजी, यहाँ मौका मिल गया। अब ये देखिए जरा, देखिए शिपू ज्योति चक्रवर्ती है मैदान पर, रिमेन रेफरी, उनसे बातें हो रही है। देखते हैं वहां से फैसला क्या आता है। क्या हैंडबॉल था? मिल गया किक, तो फिर मौका बन जाएगा एंटलर्स के लिए। बिल्कुल यहाँ एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और जहां पर तो खतरनाक है एरोन और डेविड रियांग, जी। अगर उनको आप ऐसे मौके देंगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल एक अच्छे स्ट्राइकर है एरोन, वो तो डेफिनेटली नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा है एरोन के पास, एरोन ने लगभग हर एक मैच में एक गोल तो दागा ही है। क्या पता इस फिनाले का स्टार्टिंग ही कुछ ऐसा हो, क्योंकि देखिए अभी 24 मिनट लगभग खत्म हो गए हैं, 24 से 25 मिनट, अभी जरूरत है गोल की। अब मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बातें तो हो रही है, किस निर्णय पे पहुंचता है ये फैसला, क्या ये हैंडबॉल है या नहीं है। अगर ये धलाई के पक्ष में आया मिल्टन जी, तो फिर ये घड़ी जो है, तो फिर मान लीजिए वेस्ट वाइकिंग्स के लिए थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकता है। और वेस्ट वाइकिंग्स नि बागै बेलायखे dangerous situation tam ni hinba और जदिनो Dalai Antlers score clair kanka kintu borni bagai heavy load ok line brok heavy pressure line te abahai keno और 사난 걱정어 제 David Riang 인약해봐 Aaron Riang 제가 거기서 shoot cla이 동한 게 और chances 동어 पर score cla이 नहीं पिया और light shot पर try करेगा पर अपनो chances ना लिया and West Vikings ने बगे बेलाई के कपाल का हम ताऊ नहीं गए और direct shot लिया तो अब भाई के नो पर काटी था का goal नो माना नहीं पिया ताऊ दे बुसंग नाइने नहीं बेलाई के और match बेलाई के नाइट तो कोई तीनी बतंग जागी तो तो अब भाई के नो ताऊ दे बुसंग नोर बेलाई के नोर नी team नोर support लाइट तो भाई आंखा खायो नोर जोतनो energize जोतनो बेलाई के तो तक नहीं आन बगे let's see what happens in the match today. Who's going to win the match? Who's going to score the first goal on the scoreboard? And so throw in और tabuk ball tantong Aaron Riang pia they say hi throw in और they say hi ball David Riang ni yago left wing striker te अब hai keno belai ke काम के थंगी तो रंजित रजनीकांत त्रिपुरा बोरोक जॉनलाइनिंग बेले के काम प्लेयर नि सिनी जगो रंजित रजनीकांत त्रिपुरा जाविद रियांग ताया भाई के एरन रियांग बोनो प्राइस समय न सिंग बोनो कैसे गोल स्कोर खाइमानि सिंग नुगुइ दङ अब हाइगनो तिनिनि ओ मैच साबो स्कोर खाइनो साइमिया प्या बेले के strong match continue. Let's see what happens here. It's they could have taken this opportunity but missed this
so badly. What an unfortunate situation out there for the West Vikings. They really need to push in harder this time and make the first score on the board. मिल्टन जी जगत यहाँ पे दोनों गोलकीपर जो हैं जगत हरी जमातिया गजब खेल रहे हैं आज। उन्होंने पूरा ऐसा लगता है होमवर्क करके आया है मैदान पर और उस होमवर्क का पूरा देखने को ही मिल रहा है। जिस तरह से कितने सारे गोल को सेव किया है, उनको रोकने की कोशिश की है, काबिले तारीफ उस प्लेयर के लिए। Even if you talk of the semi-final match of the West Vikings, Akanshu Devarma really helped them win the match because in the penalty shot out there, Akanshu saved so many shots from the strikers out there, and so the penalty led them to overcome the semi-final match and have reached the final match today. And so let's see what happens here. That's a throw-in. बहुत ही बढ़िया डिफेंस यहाँ पर। देखिए जिस तरह से किरी जस्ट्रॉम और एन तंबी, अगर आप उन पे ध्यान दें, आज उन्होंने भी अपनी अलग रणनीति अपनाई है। छोटे छोटे पासेस खेल रहे हैं, ट्रिक गेम के साथ खेल रहे हैं, बूट का जो यूज है सही तरह से खेल रहे हैं और अपनी टीम को बार बार एंकरेज कर रहे हैं कि इस तरफ दो इस तरफ दो। तो यही रणनीति होती है फुटबॉल में। अगर छोटे पास होंगे, आपस में खेलेंगे तो फिर जीत निश्चित है दोनों टीम के लिए। The West Vikings in the previous matches as well have, really taken so much of pressure and have played such a beautiful match. And today, I'm sure they're going to do the same, because they have this habit, or should I say, the kind of strategy that they have. They, save the ball as much as possible and score at the end of the match. And so in the first half, let's see what happens. But it is always important that you save energy and play. मिल्टन जी हाफ एन आवर खत्म हो गया, अभी तक किसी के पक्ष में एक गोल नहीं आया। मतलब आप सोच सकते किस तरह का ये हाई लेवल का गेम हो रहा है मैदान पर और प्रेशर दोनों टीम पे है। What if the match goes penalty again? और मुझे ऐसा लगता है, देखिए आज अगर पेनल्टी गया ना तो फिर मामला एक तरफ भारी हो जाएगा वेस्ट वाइकिंग्स की तरफ, क्योंकि उनके जो नामी प्लेयर है सब, उन्होंने अगर आपको उनको मौका दे दिया तो उनको बचाना, क्योंकि हमने वो मैच भी देखा था ग्लेडिएटर के साथ सेमीफिनाले का। तो मौका मत दीजिए, वहां तक जाने का मौका ही मत दीजिए कि पेनल्टी तक गेम जाए। आप साफ सुथरा गेम खेलिए, अच्छा गेम खेलिए और उसको 90 मिनट कंप्लीट कीजिए। And so there's been an injury out there, and the Met team rushed into the field. And so the players really taking time to relax for themselves and save energy on the ground. And probably after the first half of the match, the players will be more aggressive in the ground today. देखिए अभी आपको ज़रूरत है थोड़ी सी एग्रेसिवनेस की, क्योंकि वो गेम में देना है आपको, वो गेम में दिखाना है, वो गेंद में दिखाना है। जहाँ तक मैं घड़ी का कांटा देख पा रही हूँ वो रुक नहीं रहा है। 30 मिनट समाप्त हो गए हैं, 5 मिनट लगभग 4-4.5 मिनट अब बचे हुए हैं। इन 4.5 मिनट में क्या किसी के खाते में कोई गोल जाएगा या नहीं वो देखना है, क्योंकि फर्स्ट हाफ खत्म होने के बाद वेस्ट वाइकिंग्स अपने अलग रूप में आएंगे। और कहीं ना कहीं आज मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ मिथुन जी एंड मिल्टन जी कि ढलाई एंटलर्स, देखिए जरा जगत हरी जमातिया आज के प्लेयर ही बन गए हैं, आज के गोलकीपर ही बन गए हैं हमारे। आप देखिए जरा, सौरभ त्रिपुरा के बाद अगर मैं किसी का नाम बोलूं तो वो है जगत हरी जमातिया। वाओ, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई भाई साहब। बिल्कुल जग घूम गया आज, जगत हरी जमातिया भाई साहब दिया है आज जगत जी ने। मुझे वो सौरभ था, रिप्ले देख सकते हैं आप, वो साउथ लायंस का सौरभ त्रिपुरा, और आज जगत कॉर्नर। मौका नहीं मिला यहाँ पर, हल्का हाथों से वहां पर देखिए किस तरह से, ऐसा लगता है हल्के हाथों से खेला हो। ये गोल जो बचाया है उन्होंने, ये सेमीफिनाले नहीं, किसी मैच में नहीं, फिनाले में बचाया। आप ये देखिए जरा, अभी जरूरत थी। सौरभ में आज देखना कि ट्रीटमेंट कैसा रहता है, क्योंकि आज सब एम्बुलेंस में सवार हैं, पता नहीं कब क्या हो।
जी जी बिल्कुल, यहाँ देखिए जरा, अभी देखिए रिप्ले देखिए जरा, क्या क्या अच्छी कोशिश थी यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ अच्छी कोशिश है, पर आज वेस्ट वाइकिंग्स बढ़िया खेल रहे हैं। जैसे ही बॉल है ना वहां गोल डी बॉक्स में पहुंचता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है सबका। और यहाँ पर सबसे ज्यादा वेस्ट वाइकिंग्स के फैन फॉलोइंग है। आप दर्शकगण देखिए, आज है हमारे साथ बेहतरीन दर्शकगण जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अपने फेवरेट टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। वी वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द ऑडियंस, ऑल द फुटबॉल लवर्स। पेनल्टी तो मिला है क्या? नेथानियल मौका लेंगे इसका? देखिए ऐसे पेनल्टी को छोड़ते नहीं मिला है, फाउल शॉट, उसका मौका नेथानियल लेते हैं कि नहीं? क्या उठा के खेलेंगे लंबा शॉट? जी हाँ, डिग्री माप के मारे थे और यहाँ मौका चूक गए फिर से। देखिए कहा था मैंने कि जग घूमया थारे जैसा ना कोई, जगह थारी जमा दिया। भाई साहब जमा दिए मैदान पे आज। रिप्ले देख सकते हैं आप, देखिए वाह भाई साहब गजब, ऐसा लगता है 2-3 इंच का फासला था। मैंने कहा था ये किरीज एस्ट्रोम एंथम भी आप इनसे बच के रहिए। नेथानियल नहीं, बढ़िया बढ़िया, आज मुझे लगता है टीम से ज्यादा बेहतर कर रहे हैं जगत, जो गोलकीपर है, क्योंकि दाद देनी पड़ेगी उनको, इतने बार डी बॉक्स में आके व्यर्थ होना पड़ा है वेस्ट वाइकिंग्स जैसे टीम को। मतलब गोलकीपर में दम है। देखिए उसके साथ एक कॉर्नर मिला है, वो सेव जो किया था वो जबरदस्त था। भले वो थोड़ा पोल से ऊपर था बट सेव अच्छा था। बिल्कुल, वो देखना पड़ेगा क्या करते हैं ये 10 नंबर के जड़ से। क्या बैक किक, फिर से अच्छी सेव और अच्छी डिफेंस, अच्छी डिफेंस यहां पर। पेनल्टी, चलिए हैंडबॉल का अपील है यहां पर। यहां पर देखिए किस तरह से रिप्ले देखिए आप, इसमें हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी साफ कि मसला आखिर है क्या। देखिए ये जो शॉट था सैमुअल द्वारा उठा के खेला, बढ़िया पास वहां पर, अच्छी किक थी, राइट किक, और यहां पर अच्छी सेव। ओ पैर बहुत ऊपर उठा, फिर के हाथ पे लग कहा। जी हाँ, यहां पर फैसला फाइनल है ज्योति चक्रवर्ती है बाजी, फाइनल है। जी, मुझे बिल्कुल। अभी भी धड़कनें धड़क रही हैं इस तरह से कि अभी ही लास्ट मोमेंट है। देखिए जरा, कुछ सेकंड बचे हैं और हमारे ये फर्स्ट हाफ खत्म होने की, और मुझे लगता है इस फर्स्ट हाफ में तो शायद कुछ ना हो, पर सेकेंड हाफ में फॉर श्योरली कुछ अब अलग देखेंगे। रिप्ले देख लीजिए बाजी, यहाँ रिप्ले बड़ा सही तरह से दिखाया जा रहा है, इसलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ जो आज लाइव है, जिनके कारणवश ये लाइव आप सब देख पा रहे हैं। देखिए फाइनल है और फाइनल जो है उसी तरह का लग भी रहा है। वो क्रोध जो है ना फुटबॉल का, वो है यहाँ पर। बिल्कुल, वो गुस्सा होना भी चाहिए, लाजमी है, लेकिन वो बॉल पर होना चाहिए। जी, मैदान में इतने दर्शक आज, खचाखच हर तरफ दर्शकगण, जी बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं दर्शकगण के कारण भी एक प्रेशर सभी के ऊपर आ गया है, हमारे प्लेयर्स के ऊपर आ गया, क्योंकि उनको अपने दर्शकगण को नाराज नहीं करना है, कहीं ना कहीं टेंशन नहीं देना है। दे वांट कि आज वह जीते। दोनों ही टीम चाहते हैं कि उनके फैंस को वो निराश ना करें, पर जीतता कोई एक ही है। और अभी तक फिलहाल हम किसी निर्णय में पहुंच सकते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ खत्म होने की कगार पे है एंड अभी तक कुछ पता नहीं चला है कि कौन आगे जा रहा है। देखिए यहां पर अगर नेथानियल ने अगर शॉट लगाया ना 21 नंबर के जर्सी, मामला बिगड़ सकता है। और ऊपर से सैमुअल ओसेई, टैम्बो, अगर मौका नहीं बनना चाहिए यहां पर। जगहधरी जमातिया को सतर्क, सजग, चतुर, चालाक रहना पड़ेगा यहां पर। देखिए जी, जिस तरह मैंने कहा था, किरीजोस्टोम एंथम्बी को मिला है ये शॉट खेलने का मौका। किरीजोस्टोम एंथम्बी वर्सेस जगहधरी जमातिया, तैयार, धड़कन तेज, मौका। चलिए मौका मिल गया है, मौका मिल गया है यहां पर। मौका मौका मौका, अरे देखिए जरा, मैंने कहा था एक मौका नहीं छोड़ते हैं वेस्ट वाइकिंग्स।
यही मौका उनको चाहिए था। सेलिब्रेशन, इट्स कॉल्ड अ सेलिब्रेशन। देखिए पटाखे, देखिए आप, रिप्ले देखिए आप पहले, इसके बाद पटाखों की गूंज की तरफ और ऑडियंस की गूंज की तरफ हम चलते हैं। मैंने कहा था आप किरिजोस्टोमैन भी और टेम्बो, इनको मौका मिलेगा ना, और बिलास देव वर्मा, इनको मौका मिल गया ना, छोड़ेंगे नहीं आपको। बिल्कुल। तो आप थोड़े ये सब हैंडबॉल से तो कम से कम आज बच के रहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि जगत कैसे ना कैसे करके इस गोल को बचा लेंगे, पर कोई बात नहीं, आपके पास समय है, आपके पास समय है कि और गोल्स आप ना होने दें। मौके मिलेंगे आपको पटाखे फोड़ने का, थोड़ा सा और धैर्य धरिए क्योंकि खेल अभी बाकी है मेरे बॉस। पटाखे जरूर जलाइएगा, पक्ष का फैसला तो आने दीजिए पहले। जी बिल्कुल, ये निवेदन रहेगा कृपया अभी पटाखे ना जलाएं, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, हमारे दर्शकगण है, वहाँ कुछ भी हो सकता है एंड हम नहीं चाहते हैं कि आज कुछ दुर्घटना हो इस ग्रैंड फिनाले में। तो ये निवेदन रहेगा कि आप इंतजार तो करें, कौन जीतेगा पहले जीतने तो दे उनको, अपने टीम को, अपने फेवरेट टीम को जीतने दे, इसके बाद जरूर होंगे पटाखे, क्या मिठाइयाँ, पटाखे, शोर शराबा सब होगा। पूरा मौका मिलेगा आपको, बस वक्त का इंतजार कीजिए। खेल अभी बाकी है मेरे बॉस, सिर्फ 38 मिनट का खेल हुआ है, देखना है कि अंतराल कब तक होता है। देखिए एक मौका मिला है, अब तो एक किक का मौका तो मिला है धलाई एंटलर्स को, क्या इसको कन्वर्ट करेंगे ड्रॉ में? एरॉन, क्या शॉट यहां, ओ भाई साहब गजब, मौके दर मौके छूटते जा रहे हैं आज, और थलाई अगर इस तरह से मौके छोड़ेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि थलाई एंटलर्स के पास ऐसे मौके आएंगे नहीं। अभी जब रिप्ले देखेंगे ना इसका सोरोमिता, तो आपको पता चल जाएगा कहां आपने चूका है। जी, यहाँ बहुत ज़रूरत थी कि आप ना चूकें, आपको अभी हर एक कैलकुलेशन ध्यान से देखने, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग के बाद एक उनके पास है स्कोर, आपको स्कोर करना है। अभी डिफेंस देखिए आप, वेस्ट वाइकिंग्स का रिप्ले देख लीजिए पाजी, देखिए शॉट, वो जो लेफ्ट से बैक किक होकर शॉट किया है, उसको सीधा पोजीशन में घूम के मारा, उसको पैर को किस तरह से घुमा के शॉट खेला है, लेकिन वो गोल नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा गेम फाइनल जैसा हो रहा है आज। जी बिल्कुल, आज लग रहा है ग्रैंड फिनाले है। एंड वंस अगेन वी वुड लाइक टू थैंक TTADC, जिनके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया कि फुटबॉल को इतना सराहा जाए, एवं हम देखेंगे कि फ्यूचर में और भी ऐसे गेम्स को सराहा जाएगा। इसी के साथ हम चलिए, हाफ टाइम का सिग्नल हो चुका है यहाँ पर, पहला अंतराल एंड हाफ टाइम हुआ है अभी। हाफ टाइम के साथ हम कुछ ही क्षण में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे सेकेंड हाफ में, पर तब तक के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन अपना ख्याल रखिए बहुत बहुत, एंड यस हमारे साथ बने रहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मौके दर मौके अगर ऐसे छूटेंगे तो आपका, देखिए एक कितने सारे मौके आज वेस्ट वाइकिंग्स के छूटे हैं, लेकिन यहाँ पर मौका मिला था लेकिन चूक गए, लेकिन वो मौका जो हैंडबॉल का था वो मौका नहीं चूका। यहाँ पर उसी का क्रिजोस्टोमैन तंबी ने अपने टीम के लिए एक गोल वहां समेट लिया। तो अभी धलाई को बाहर कोच के साथ बैठ के एक बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आपको 40 मिनट बाद में और मिलेंगे अंतराल के बाद, तो इसमें बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए कि किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, कि आपके सामने बहुत अच्छी टीम है। वही धलाई एंटलर्स के जो कोच हैं वो उनको समझा रहे हैं कि आप काम डाउन होइए, आप शांत रहिए, शांति से आप सोचिए क्या और नेक्स्ट आपको रणनीति बनानी है जिस तरह से आप जीत पाए, क्योंकि देखिए अभी प्रेशर आ गया है एंड ये प्रेशर देंगे वेस्ट वाइकिंग्स ये प्रेशर दे रहे हैं ऑलरेडी धलाई एंटलर्स के ऊपर, क्योंकि उनका ऑलरेडी स्कोर हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर उनको मिल गया है धलाई एंटलर्स को कि अभी कैसे ना कैसे या तो इसको टाई करना है या बढ़ोतरी करनी है। Shine the brightest light.
Tripper's game, hear the fame. Super League, remember the name. Tripura की ताकत गर्व हमारा, एक सपना एक जुनून, खेल हमारा. और तैयार फिर से वो हाफ टाइम के बाद जिस मैच की गूंज हर दिशाओं में फैली हुई है, TTAADC सुपर लीग फाइनल। और आज फैसला हो जाएगा कि पक्ष किसका भारी था, हौसला किसका बुलंद था। लेकिन अब तक बहरहाल वेस्ट वाइकिंग्स एक गोल के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। क्या धलाई इस मैच को ड्रॉ करेगी या खिताब अपने नाम, या फिर वेस्ट वाइकिंग्स के ये जो बिलाश देबबर्मा, किरीज एस्टॉम, जैम तैम्बो, क्या इनसे हमें उम्मीद लगानी पड़ेगी कि इस मैच को ड्रॉ होने ना दे, या फिर इस गोल को शून्य और गोल में परिवर्तित कर दे, क्योंकि एक गोल उनके खाते में ऑलरेडी है। हेलो, तो देखिए यहाँ अभी हेलो देखिए यहाँ अभी जिस मुकाम में ये मैच है अभी फिलहाल, देखिए सेकेंड हाफ में बहुत कुछ चेंज हो सकता है। अगर हम वेस्ट वाइकिंग्स को देखें तो वेस्ट वाइकिंग्स का मैंने आपको पूरा लिस्ट बताया था, मैंने आपको कहाँ उनका गेम हुआ है पहले एंड कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। अगर मैं उसी तरह से अगर चलूँ ढलाई एंटलर्स के लिए, तो ढलाई एंटलर्स का जो पहला मैच था वो इस टूर्नामेंट का 8वां मैच था एंड एरॉन रियांग की तरफ से एक गोल था। 1-0 से वह जीते थे खुआई वॉरियर्स के अगेंस्ट में बिराशी माइल्स में। अगर मैं देखूं ढलाई एंटलर्स का दूसरा मैच जो हुआ था वो हुआ था खुमलुंग में ही, जो अगेंस्ट में था गोमती ग्लेडिएटर्स, वन ऑफ द टॉप यहाँ इस टूर्नामेंट के टीम है। उनमें वो
ड्रॉ हुआ था, टाई हो गया था 1-1 से, बट दे डिड सो गुड। बीरेन चकमा का एक ऑलरेडी गोल था, तो अच्छा खेला था उन्होंने। वहीं अगर मैं बोलूँ धलाई एंटलर्स का जो तीसरा मैच था नॉर्थ पैंथर्स के अगेंस्ट में, जो कि हुआ था कांचनपुर में, वहाँ वह जीते थे वंस अगेन 1-2 से। एंड बीरेन चकमा और वही रजनीकांत त्रिपुरा उन्होंने अच्छा खेला था वहीं। एंड चौथा मैच जो हुआ था धलाई एंटलर्स का, ओपन कुमार, मानी त्रिपुरा, बीकन चकमा, उन्होंने अच्छा खेला था। उनके द्वारा 3 गोल हुआ था 2-3 से, वह फिर से जीते थे। सेमीफाइनल की अगर हम बात करें, साउथ लायंस के अगेंस्ट वह टिके थे, साउथ लायंस के अगेंस्ट वह जीते। तो बात कहीं ना कहीं यहाँ आ जाती है कि अच्छे प्लेयर्स हैं धलाई एंटलर्स में, बढ़िया प्लेयर्स हैं। देखना बस ये है कि आज ये बढ़िया प्लेयर्स कितना बढ़िया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आज परफॉर्मेंस की आपको ज़रूरत है। अभी तक आपके जो परफॉर्मेंस हमने देखी है, कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेशन जो मैं इतने दिनों के गेम में देख पा रही हूँ, वो कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं मुझे मिसिंग लग रहा है। द थिंग इज दैट कि अभी वो कोऑर्डिनेशन दिखाने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कब? दिस इज द ग्रैंड फिनाले। और ऑलरेडी एक गोल खाते में है वेस्ट वाइकिंग्स के, तो वेस्ट वाइकिंग्स कहीं ना कहीं अभी आपसे बढ़ोतरी में है। और आपको देखना है यहाँ सेकेंड हाफ शुरू, सेकेंड हाफ में अब देखना है कि क्या फिर से वेस्ट वाइकिंग्स ये गेंद अपने डी बॉक्स में तक ही सीमित रखती है या थोड़ा चांस ले लेगी धलाई एंटलर्स। बेसब्री से इंतजार उस पल का, अंत में किसके पक्ष में ये फैसला जाता है। देखिए दोनों टीमें जबरदस्त है, यहाँ पर फाइनल तक पहुंची है बड़ी कशमकश और बड़ी जद्दोजहद के साथ। देखना है आज किस तरह का निर्णय के साथ, किस तरह के परामर्श के साथ अंदर टीमों को भेजा गया है और अभी क्या रणनीति के साथ ये टीम खेलती है। विशेषतः यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि धलाई एंटलर्स वो टीम जिनके अभी तक जितने मैच खेले हैं वो 1-0 के साथ ही फाइनल में आए हैं। एक मैच इनका ड्रॉ भी रहा था। साउथ लायंस बहुत अच्छी टीम है, सेमीफाइनल से बाहर हो गई। ये टीम तो उस जगह से यहाँ पर आई है, तो उस टीम को उसी के साथ, उसी दक्षता के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे 2 प्लेयर है एरोन और डेविड, बहुत आगे लेके गए। छोटे कद के प्लेयर है लेकिन एनर्जी भरपूर मात्रा में है, तब देखना पड़ेगा यहाँ पर। और एक बात ये देखना होगी जगह थरी जमातिया जो उनके गोलकीपर है, किस तरह वो एक अच्छे रक्षक की भूमिका आज निभाते हैं उस गोल पोस्ट के अंदर। अब मिला है कॉर्नर, क्या इस कॉर्नर का सही प्रयोग होगा, सही जगह उछाल होगी, देखने वाली बात है। सही जगह डालिए, शायद हेड हो जाए यहाँ पर। जी हाँ, मौका तो बना था प्रभु, लेकिन मौका चूक भी गए। लंबा शॉट खेल दिया यहाँ पर, डिफेंस तगड़ा। आपको देखना पड़ेगा ना, जेम टैम्बो थे वहां तैनात, जो हेड उन्होंने दिया है कैसे वो गोल जाएगा। देखिए एक चीज तो माननी पड़ेगी यहाँ, कहीं ना कहीं मिथुन जी मुझे ये भी लग रहा है कि 4 से 5 मैचेस हुए, इसमें धलाई एंटलर्स ने सिर्फ 2 मैचेस खुमलुंग स्टेडियम में खेले हैं, जिसमें एक गोमती ग्लेडिएटर्स अगेंस्ट में था एंड उनमें वह हारे थे। कहीं ना कहीं हारना और जीतना उसमें था नहीं, क्योंकि वो टाई था, बट स्टिल उस पर्टिकुलर टाइम में वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमें नहीं मिला था। अगर हम देखें कि सेमीफिनाले दे डिड सो गुड, नो डाउट, बट साउथ लायंस कहीं ना कहीं उन्हीं की तरह ऐसे मैदान में वह जाके आए ना, ऐसे मैदान से उसको मिले हैं, वो गाँव के मैदान, हरियाली वाले गांव के मैदान, और ये जो है कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये डिसएडवांटेज है धलाई एंटलर्स के लिए, क्योंकि उनका जो मेन रहा है हमेशा वो असली मैदानों से रहा है। तो क्या ये गोल हो पाएगा? एंड व्हाट अ मिस, 90 नंबर के खिलाड़ी, अच्छी कोशिश, उपन कुमार हल्ला, उनके द्वारा अच्छे गोल होते हैं, बेहतरीन स्ट्राइकर पर मिस राइट विंग में है, बट इस बार भी मिस गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी भी समय है आपके पास। देखिए अभी सेकेंड हाफ का कुछ ही मिनट गया है, आपके पास समय है, भरपूर यूज कीजिए, सही सदुपयोग कीजिए, क्योंकि अभी अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, देखिए आप यहाँ रिप्ले देख लीजिए, बेहतरीन कोशिश, बट आकांक्षु जो गोलकीपर है फोकस्ड, ये शायद अगर ये गोल पोस्ट के आसपास नहीं भी होता तब भी शायद आकांक्षु
रहते और ये गोल नहीं हो पाता। तो बढ़िया किया है, कॉर्नर उनको मिला है, क्या सही सदुपयोग होगा। और यहाँ फिर से वेस्ट वाइकिंग्स में मिल गया है उनको चांस। यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स बस चांस की अपेक्षा में रहते हैं और क्या नहीं, ये भी गोल नहीं होगा। चलिए, यहाँ अच्छी पासेस हो रही हैं। मिल्टन जी, अभी तक के गेम में क्या एनालाइज किया है आपने? अगर आपको एक समरी देना हो कि इस गेम में अभी तक क्या जो हुआ है, आप किस तरह से इसको समराइज करेंगे? The Dalai Antlers, have been, always ahead of all time. And so, they have been doing really, really awesome job so far. See, the way they have been tackling balls, really, really awesome. This shot was awesome. It was powerful, fully packed. And so, nice shot it was, but if the ball would have gone, check out the replay, how the player's been injured out there. And see the sportsmanship out there. Both the team, talking to each other, discussing on how things are happening, what is going on the ground. And so, beautiful match so far. And it's 39 minutes past 30 minutes, 40 minutes past. And so, it's 1-0 up till now. West Vikings 1 and Dalai Antlers 0 so far. And so, both the team, have come prepared for the match. And let's see what happens. Dalai Antlers still taking time and trying to, save energy. Probably, they're going to shoot their best shot at the end of the match when the West Vikings are tired. But, they're trying to, save their energy and, play tactfully on the ground. And it's a throw-in for the West Vikings now. Let's see if West Vikings can shoot another goal in the D box out there. But yeah, it's important to always have good defense on the ground. So the Dalai Antlers picked the ball and carried forward. Nice ground shot out there, and what an opportunity! Let's see what happens. Dalai Antlers taking time, but in the meantime, there's been enough player from the part of the West Vikings. West Vikings doing awesome so far, so good. यहाँ देखिए, अच्छी पासेस, ये देखिए यहाँ पासेस, ये दलाई एंटलर्स। अभी समय है, पर कहा था ना मैंने मिल्टन जी, कैलकुलेशन, सेंटीमीटर्स मीटर्स का कैलकुलेशन, थोड़े से सेंटीमीटर्स और यहाँ गड़बड़ाहट। See, when you are playing on the ground, calculation will sometimes matter. But, most of the time, if you have a powerful shot, definitely it's going to go in the box. And so let's see what happens if the Dalai Antlers will be able to at least make one score in the next few minutes or so. But then if they are not being able to make any score, then it's going to be the win for the West Vikings. And so let's take some time to see what happens here. Probably the West Vikings player out there is telling that probably this is a handball, and the ref out there has already picked up the solution out there and has given a free kick. चलिए, मैच तो चलता रहेगा। मिल्टन जी एंड मिथुन जी, आज ऑडियंस को देख के मुझे भरपूर अच्छा लग रहा है। इतने ज्यादा फुटबॉल लवर्स, फुटबॉल प्रेमिक एवं प्रेमिकाएं आज जुड़ी है। आप देखिए जरा, बढ़िया लग रहा है देखने में। पूरे स्टेडियम के आसपास हर जगह में ये बेहतरीन ऑडियंस ही है जो सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने टीम्स को और बता दे रहे हैं कि हाउ मच दे लव फुटबॉल। Sormita, when you sit as an audience, it is, it is really, really very easy to judge the players on the ground. You could have shot that way, you could have done this way. But yeah, that's been a, offside call from the linesman out there. The ref has, always been really, really active out there and taking care of all the situations. And so, yeah, it is important for every player to,
take real control of the time, the shots, and the time calculation out there and play on the ground. Otherwise, you're definitely going to miss the right opportunity. And so it is always important. But you or me as a audience, we really tend to judge the players on the ground. But it's not that. It's not that easy. It's not that easy to judge anybody. And so nice it was. Nice it was from the defending team out there. But yes, players been injured. Probably the MAC team will be called in. Let's see what happens. Ladies and gentlemen, the audiences out here is really, really awesome. They've been supporting their favorite team, be it the West Vikings or the Dalai Antlers. Both the team has got enough supporters out here and have been cheering up for their team so far. And so, but at the end of the day, whoever wins the match will definitely enjoy the day and have fun. And so let's see who's going to do it, who's going to make the history of TSL for the first time in Tripura. जी मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज के इस मैच में कौन जीतेगा। देखना ये है, देखिए मिथुन जी और मिल्टन जी, मुझे पता है आप फिलहाल थोड़े से इस टेंशन में है, इस असमझ में है कि कब क्या हो सकता है, किस मिनट में क्या हो सकता है। ये आप साझा कर सकते हैं, अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। आपके पास ये देखिए, जो मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं, ये कैसे मिस। That was an unfortunate situation for the Dalai Antlers. They could have taken the opportunity out there, but this is not happening. It's not their day today so far. But रिप्ले देखिए आप जरा। let's see what happens in this corner shot out there. Probably, he's going to shoot it in the air, and that's another opportunity. But no, the defender out there has, put the ball out of the D box. Again, taking the opportunity, the ball has been shot in the D box. And it's a goal! Oh my God! Oh my God! It's a goal! And it's 1-1. That's a goal! At last! Goal by Dalai Antlers. आप देखिए जरा, ऑडियंस को देखिए, अपर छो डांस कर रहे हैं यहाँ। What a celebration out there! रिप्ले देखिए जरा। मिथुन जी, आज आपकी लाइनें मुझे बोलने का मन कर रहा है कि पाजी चक दे फट्टे नप दे गिल्ली, सुबह जलंधर शाम दे दिल्ली। क्या बात, क्या शॉट था, वाओ। I knew this is going to happen. This was supposed to happen, and the Dalai Antlers really have faith in the team, and that is how they shot the goal in there. What a shot it was! बिल्कुल मिल्टन जी, धलाई ने साबित कर दिया आज बेस्ट टीम किसे कहते हैं। और जिस जगह से आके आज मैंने कहा था हाफ टाइम के बाद अगर एक गोल कर दिया ना, तो ये मैच कुछ भी पलट सकता है। आपने कहा वो पेनल्टी वाली बात, क्या आज पेनल्टी होगा तो ये तो मुकम्मल हो सकता है। It's 47 minutes past now, and if it becomes 1-1 or draw today, then it's going to be a penalty shot. बिल्कुल, जो आप पेनल्टी क्यों नहीं होगा। देखिए वो टीम धलाई जिस तरह से हेड, देखो गोल क्या है, गोलकीपर को मालूम ही नहीं चला, जमातिया जी थे वहां पर, उनके सामने से बॉल निकल गई, इतना क्विक रिएक्शन था वो। और एक अच्छी बात है और अच्छा एक टीम एफर्ट जिसको कहता है वो यही है, धलाई एंटर्स। Dalai Antlers have always been really strong, in managing the team and playing really cool on the ground. बढ़िया धलाई, देखिए किस तरह से यहाँ पर ट्विस्ट के गेम को खेल रहे हैं। यहाँ पर वहां पर 10 नंबर के खिलाड़ी हैं, देखिए सैमुअल के साथ धक्के हुए थे, थोड़ा सा हल्का सा धक्का लगा और यहाँ पर शायद येलो कार्ड तो जेब से निकला है क्या, ये ऊपर बायां हाथ, जी हाँ बिल्कुल येलो कार्ड इस मैच का दूसरा सैमुअल को।
और सैमुअल ने थोड़ी सी गलती तो वहां की है, धक्का तो लगाया थाला एंडलर्स के प्लेयर को। लेकिन देखिए एक चीज, ये बात है 48 मिनट करीब हो चुके हैं और दोनों टीम के पास एक एक अंक। अगर यही चलता रहा, आपके पास वक्त कम, 35-35 70 मिनट का खेल, और आपको यहां रणनीति नहीं छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वेस्ट वाइकिंग्स अंत में बहुत भयानक रूप धारण कर लेती है। वो कहते कि अंत भला तो सब भला, तो ये देखने को मिलता है वेस्ट वाइकिंग्स के जरिए। And you know that's what happens. That's what happens with the West Vikings. At the end, they will be, they will have, they will have the ball in the legs and definitely will make another score. Again, we have seen some of the maximum changes in players in Lefunga. And so in Lefunga, we have seen the match. That was one of the most beautiful match I've ever seen. They've changed so many players. They have changed so many players at the end of the match, and they have really done awesome job on that day. And so you see how the goalkeeper out there seizing away the ball from the legs of the players. And so Mithun, let me also ask you, and Soromita, the West Vikings, in previous matches, they have always had this strategy of changing players at the end of the match, and saving as much as energies, and exchanging those players, those who are already exhausted. And so, sending new energy in the game and changing the kind of strategy that they have on the ground. And so, probably this is also going to happen today. Let's see what else takes place in this match at Komalung today, the final match between Dalai Antlers and West Vikings. मिल्टन जी, आपने कभी चाय को उबलते हुए देखा है? चाय को बनते हुए देखा है? आप देखिए जरा, चाय जब बनता है, जब उबलता है, जितना उसको उबाला जाए उतना ही उसके टेस्ट में डिफरेंस आता है। अब वही है हमारे वेस्ट वाइकिंग्स। आप उनको बस सराहिए, आप उनको बस वेट कीजिए। वो टाइम ले रहे हैं बनने का, उबलने का। एक्स्ट्रा लास्ट टाइम में ऐसा टेस्ट देंगे, ऐसा आपको मिठास देंगे कि वो जो तड़का है, कह सकते हैं, वो देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। जो फैंस अभी इंतजार में हैं, उनको पता है कि वेस्ट वाइकिंग्स किसी भी क्षण में ये पूरे गेम को चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी कि यहाँ वेस्ट वाइकिंग्स बहुत अभी तक फिलहाल लीड कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं ढलाई एंटलर्स ने अभी शो कर दिया है कि उनमें भी है दम। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल किसी भी टीम, दोनों ही टीम में ये प्रेशर है कि कौन बढ़ोतरी लेगा, क्योंकि एक बढ़ोतरी मतलब आप उस गेम में कहीं ना कहीं आगे जा रहे हैं। और समय है बहुत लिमिटेड। जिस तरह का अभी हमारे पास समय, देखिए शाम ढल रही है, शाम हो रही है फुल्ली, और हमारे पास समय बहुत कम है, ये इस गेम में समय बहुत कम है। तो वो देखना है अभी कि किस तरह से ढलाई एंटलर्स आगे जाती है अपनी स्ट्रेटेजी से, या वेस्ट वाइकिंग्स आगे जाती है अपने जोर से। मानना पड़ेगा, अभी देखना पड़ेगा यही। That's what Soromita. It is, really interesting to see, penalty shots at the end of the match. Today, probably, we may have the opportunity to see and watch such kind of a match. And this is an opportunity for the West Vikings. Let's see what happens. Again, the ball's in the hands of the West Vikings, picking up the ball, safely sent it to the... Wow, क्या अच्छी कोशिश थी मिल्टन Yes, जी। and there the linesman picked up the fault, and there's going to be a shot out there, free kick. जी, तो यहाँ मिथुन जी इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर क्षण में क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए यहाँ अभी
समय बहुत कम है, 53 मिनट्स 54 मिनट्स ऑलमोस्ट हो गए हैं। दैट मीन्स अगर हम जोड़ तोड़ के भी लगा लें तो सिर्फ 15 मिनट के आसपास गेम और चलेगा, 15 से 16 मिनट। इस 15 से 16 मिनट में अगर चेंजेस हुए तो वो चेंजेस होंगे गोल्स में। एक भी गोल पूरा गेम चेंज कर सकता है, क्योंकि एक गोल किसी भी टीम के द्वारा किया गया तो वो अपना डिफेंस स्ट्रॉन्ग कर लेंगी और उनके पास, उनके दिमाग में ही रहेगा कि उनको अभी पास करना है टाइम को। तो कहीं ना कहीं अभी ये रणनीति से दोनों ही टीम मुझे लगता है खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस जगह में क्या क्या होना चाहिए मिल्टन जी? See, now is not the time to waste. Now is not the time to, shoot the ball outside the, boundary. But it is always important to, shoot the ball straight into the goal post, and you take as much as opportunity and chances as possible on the ground. मिल्टन जी, अगर चेंजेस करने होंगे ना तो यहाँ पर पोहर दीपरमा को बिठा के रखा है वेस्ट वाइकिंग्स ने। अगर उसको उठाते हैं, चेंजेस करते हैं, तो फिर शायद ये थोड़ा मसला खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपने वहां पर रकीत को लेकर रखा है, रकीत को अपने स्ट्राइकर पे रखा है। वहां पर उतना खासा अनुभव है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, लेकिन वहां पर उनका उतना मेरे को देखने को नहीं मिला बॉल के साथ किस तरह से डीलिंग हुई है उनकी, क्योंकि मुझे वहां पर लगा जेम्बो और किरीज एस्ट्रॉम और बिलाश, इनका कोऑर्डिनेशन ठीक ठाक था, बट अपने स्ट्राइकर में रखा है इसको। अब देखिए किस तरह से लंबा शॉट यहां पर, भाई साहब का जब तान के सीधा मारे हैं तीर निशाने पे, लेकिन वहां पर खड़े थे जगत हरी जमातिया, गजब। See, Mithun, what happens when you shoot, long shots? The goalkeeper actually is unable to judge where the ball is going to go, and so that's what is important. When there's no player or defenders on the part of the goalkeeper beside the goalkeeper gets confused and will definitely make some mistakes out there, and so that's why it is sometimes important to shoot longer shot as well. बढ़िया डिफेंस यहाँ पर। मुझे लगता है ये गेम जिस तरह से आगे जा रही है, 56 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा आगे बढ़ते हुए यहाँ पर, लेकिन एरोन से बॉल छीन लिया गया है नाथानियल द्वारा। अब देखना है यहाँ पर किस तरह से पासेस देके अपनी टीम के, लेकिन ये नहीं चाहेंगे, धलाई नहीं चाहेगी मिल्टन जी कि ये पेनल्टी तक जाए, कि अगर ये पेनल्टी तक गया तो मसला काफी भयानक हो जाएगा। अब देखते हैं रेफरी शिबुज्योति चक्रवर्ती क्या फैसला लेते हैं। आपस में भिड़ते हुए प्लेयर्स, अभी रणनीति किस तरह की होगी, रिप्ले देख सकते हैं आप। ओ, टांग पे लगी इनके। चलिए यहां पर थोड़ी बहुत ऐसी देखिए, ये सब फुटबॉल में ना जायज है, कुछ अभिनय ही भी होते हैं। येलो कार्ड यहां पर देखिए, 68 जर्सी जैम टैम्बो को येलो कार्ड। तो यहां पर 3 येलो कार्ड अभी तक आ चुके हैं, लेकिन ज्यादा वेस्ट वाइकिंग्स के खिलाफ आए हैं, मतलब वो किस तरह से फाउल खेल रहे हैं ये दर्शाता है। तो लेकिन फाइनल है बॉस, एवरीथिंग इज फेयर एंड लवली, क्योंकि वार है बॉस, आज कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। मिल्टन जी क्या लगता है आखिर के 23 मिनट में क्या ये पेनल्टी तक जा सकता है ये मैच? And so, Mithun, when we are talking, of the kind of gameplay that they're doing right now on the ground, both the team, have, enough stamina, have been doing really great, scored 1 each, but Dalai Antlers, have been playing so well so far, even from the day one. They have been doing really, really awesome matches. And if you talk of the West Vikings as well. So that's what I was saying. The kind of match these players have been playing is really, really, appreciable, and we'll have to, appreciate them
the way they have been playing so far. Because even West Vikings have been doing really, really well. So far, they've scored a total of 13 goals in the total match. And for the Dalai Antlers, it's and so that's why it is important to see how the Dalai Antlers will fight back with the West Vikings later today. And so it's total of 7 goals that they've scored so far in the total match of TSL. And so there it looks like the West Vikings is stronger than the Dalai Antlers. But the Dalai Antlers, nevertheless, you cannot underestimate the way they've been playing the matches and have come up to this level. And this could have been a goal for the Dalai Antlers. They could have actually made their opportunity, but somehow the goalkeeper is already there and saved the ball. और मिल्टन जी बिल्कुल पूरी ताकत अभी झोंक दीजिए दोनों ही टीम, क्योंकि ये अगर पेनल्टी शूटआउट के लिए गया ना, बड़ा मतलब खतरनाक साबित हो जाएगा. ये किसके लिए होगा? पूरा मैच जिसने देखा है उनको मालूम है, क्योंकि ये एक तरफा मैच हो जाएगा फिर. इसलिए अभी दोनों ही टीम अच्छा प्रदर्शन करी थी, खासतौर पे धाला एंटलर्स. इसको अभी ध्यान रखना पड़ेगा, और रखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि ये मैच पेनल्टी शूटआउट में नहीं जाना चाहिए. तो अच्छा परफॉर्मेंस दीजिए और खेल को जो 70 मिनट है उसमें खत्म कर दीजिए. और यहाँ पर बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए एक वो शॉट था जो सेंटर पॉइंट से नेथानियल ने मारा था कुछ देर पहले सीधा गोल पोस्ट पर, वो देखने लायक था. अगर वहां से गोल पोस्ट का कॉर्नर सिलेक्ट कर लेते वो लेफ्ट और राइट तो गोल हो जाता, वो परमानेंट एड्रेस हो जाता उसके लिए. I'm really excited to see the final trophy on the ground. Who's going to carry away the trophy of the match? And so let's see what happens. Who's going to win the match? But the audience, thank you so much for being such a lovely audience here today and supporting football tournament, the TTAADC Super League 2024-25. Wonderful match so far between West Vikings and Dalai Antlers. चूक नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसे चूक देंगे आप डिफेंस को वहां तगड़ा कीजिए. आप डिफेंस कर रहे हैं, वहां पर बॉल को आप ग्राउंड शॉट पे दे रहे हैं और आपके बगल में राइट हैंड साइड में वेस्ट विकिंग्स के प्लेयर खड़े हैं. मौके ही नहीं बनने चाहिए वहां पर. अगर आप मौका देंगे तो आप एक मौका गवा भी देंगे आज, क्योंकि आज फाइनल है बॉस. वहां पर मौके नहीं छूटने चाहिए. देखिए किस तरह से नेथानियल वहां पर सजग सतर्क बिल्कुल सेंटर पे, अच्छा मिडफील्डर का स्ट्राइकर का भूमिका निभाते हुए मिडफील्डर भी तैनात वहां पर. लेफ्ट विंग राइट विंग को देखिए किस तरह से वह सतर्क रहते हैं. जहां पर ओसे ही खड़ा है और अन्यायते ओसे डोंकोर एक अच्छे प्लेयर है. उस दिन जो पेनल्टी शूटआउट हुआ था उसमें अच्छा भूमिका निभाई इन्होंने. इनके गोल के साथ खेल समाप्त हुआ था. तो आज धाला एंटलर्स के जो प्लेयर्स हैं उनको देखिए मौका, फिर से आप मौके दे रहे हैं. और जैसे वक्त यहां और डिफेंस बढ़िया सेव यहां पर धाला एंटलर्स द्वारा, बहुत ही बढ़िया सेव डीप बॉक्स के अंदर. शायद ये कॉर्नर, यहां पर रेफरी का सिग्नल तो यही है. अब देखिए चोटिल वहां पर, लेकिन अच्छा डिफेंस पैर के बीचों बीच से गेंद को किस तरह से पुश कर दिया वहां पर बाहर की तरफ के लिए. You see, there we have the CEM of TTAADC, Sri Purnachandra Jamatia, and also others, EMs and MDCs, and all other officials of TTAADC watching the match and supporting the TSL 2024-2025. Because of their initiative, we had this opportunity to watch such a lovely match today here at Komaling Stadium. And so, ladies and gentlemen, thank you so much to the TTAADC government for taking such a beautiful, initiative for the youngsters. And let's be united in sports.
nicely save out there, and beautiful it was. Beautiful shot it was from the part of the West Vikings. देखिए पकड़े थे उनके कॉलर पे, यहाँ किरिस जॉर्जटाउन थे, ये एंथम भी ऐसा करते हैं, ये थोड़ी सी कहते हैं ना नादानिया टाइप के, खिलवाड़ जिसे कहते हैं, एक तरह का खिलवाड़, और खेलकूद में ये सब चीज जायज भी है। देखिए आज फिनाले है और जिस तरह का अभी एक मौका मिला था वहां से जिस तरह से डिफेंस किया है धाला एंटलर्स ने, काबिले तारीफ। गोलकीपर भी वहां तैयार थे, जगत हरी जमातिया, लेकिन देखना पड़ेगा अभी क्या मौका बना पाते हैं कोई में, लेकिन अभी ओ देखिए एरोन कह रहे हैं कि वो अपने कोहनी से थोड़ा पुशअप किया था उनको, लेकिन यहां पर ये नेथनियल है, नेथनियल के साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की यहां पर, लेकिन अब वक्त 6 मिनट का शेष बचा है, क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलता है रेफरी द्वारा, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर ये मैच ड्रॉ होता है 70 मिनट में, तो अगर एक्स्ट्रा टाइम आपको 2-3 मिनट मिलेंगे, रिप्ले देख सकते हैं आप। देखिए किस तरह से ये खेल की भावना जो है उसको बढ़ाती हुई, ये होता है फुटबॉल, एक उच्च कोटि का लेवल का खेल, जिसके करोड़ों करोड़ों प्रशंसक बैठे हुए हैं आज मैदान पर और ऑनलाइन देख रहे हैं। बढ़िया प्रदर्शन दोनों टीमें दो का। 5 मिनट अब देखिए सौरमिता, 5 मिनट अगर यहां ड्रॉ होता है तो मैच खेल जाएगा पेनल्टी शूटआउट की तरफ। क्या पलड़ा एक तरफ या दोनों तरफ? Check out the ground at Cumberland Stadium. It looks really, really awesome, beautiful ground out here at Cumberland Stadium today. And, the TSL 2024-25 is sponsored by Oil India. And so I'd like to thank the TTADC government for taking such initiative as well. And the officials as well for taking such pain to organize this wonderful match. अभी इस मुकाम में जो मैच है, पहले तो मैं दर्शक कर दो धन्यवाद देना चाहती हूँ, दर्शकगण पूरी गैलरी भरी हुई, वाओ जस्ट वाओ, कहते हैं ना ये इसको कहते हैं द ग्रैंड फिनाले। सो I'd like to thank you ऑडियंस, थैंक यू सो मच फुटबॉल लवर्स। सेकेंडली अभी जिस मुकाम में अभी मैच है, देखिए 4 मिनट लगभग 3.5 से 4 मिनट अभी बचे हैं। इन कुछ मिनटों में क्या ये गेंद किसी भी गोल पोस्ट से टकराएगी, किसी भी टीम का क्या कोई गोल होगा, ये देखना है। जहां तक मुझे पता है वेस्ट वाइकिंग्स को जाना ही गया है आखिरी के कुछ मिनटों में पूरा गेम चेंज करने के लिए, तो अभी गेम चेंज की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी अगर आप गेम चेंज कर रहे हैं वो किसी भी टीम के द्वारा हो तो ये बेटर है, बेटर देन पेनल्टी, बिकॉज कहीं ना कहीं पेनल्टी यहाँ हैंडबॉल और चांस मिल रहा है एंटलर्स को। पर कहीं ना कहीं मुझे अभी ऐसा लग रहा है अभी जिस क्षण में हम आ गए हैं अभी जरूरत है एक गोल की, क्योंकि पेनल्टी में कहीं ना कहीं आपको पता है। ये देखिए जरा अच्छी कोशिश, पर क्या ये रंग लाएगी एंटलर्स के लिए? अच्छी पासेस सही तरह से वो देख रहे हैं कि यहाँ 18 नंबर के पास देने की कोशिश थी, पर वेस्ट वाइकिंग्स ने ले लिया यहाँ गेंद फिर से। यहाँ तैनात थे वह कि हमारे पास गोल आएगा हम ले लेंगे, इस तरह से वेस्ट वाइकिंग्स के सैमुअल वहां तैनात थे। और यहाँ कोशिश अच्छी है, पासेस अच्छे हैं। यहाँ सिर्फ शेष 3 मिनट के खेल में क्या कुछ होगा, और यहाँ काफी इजीली गोल को पकड़ लिया है, मतलब हो नहीं पाया वो गोल, काफी इजीली वो गेंद को पकड़ लिया गया है आकांक्षु के द्वारा। मिल्टन जी, लास्ट 2 मिनट्स, व्हाट डू यू थिंक? इन आखिरी 2 मिनटों में क्या होगा, या फिर पेनल्टी के साथ हमें पता चलेगा? Probably, there's going to be, few minutes extension of the time. And so there's going to be a change in the player from the part of the West Vikings, and so there's been a call. The West Vikings will definitely, have new energy today, and will call out 72 number player, and will send in the 49 number jersey in the ground. And so
And so, ladies and gentlemen, the match between West Vikings and the Dalai Antlers looking really, really awesome so far. And it's one each so far. And so probably, the match is going to be a penalty shot at the end of the day. But let's see what happens. The West Vikings always have the, intention to score at the end of the match. Correct. Probably Correct. at the end of the 2 to 3 minutes. Let's see, there's an opportunity to goalkeeper rush and push the player. And probably there's going to be a goalkeeper kick out there. मिल्टन जी बस और कुछ सेकंड्स ये मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है. पेनल्टी शूटआउट के लिए क्या तैयार है टीम, या फिर वेस्ट वाइकिंग्स वो अपना जलवा दिखाएगी जो आखिर के कुछ पलों में दिखाती है. फ्यू सेकंड्स वेस्ट वाइकिंग्स के लिए. I don't know what's going to happen, but there's always a winning or losing team in every match. And so, nevertheless, both the team have been trying their best to win the match, both scoring 1-8. West Vikings try the best, and the goalkeeper picked the ball, saved it. मैंने कहा था मिल्टन जी कि आखिर के सेकंड्स में भी कुछ भी कर सकता है. आप मौका मत दीजिए नेथनियल ओसेमे ये सब प्लेयर्स को, सैमुअल्स को. They've been always doing this at the end of the match. At the end of the match, last 2 to 3 minutes time, they would definitely score another goal. Let's see what happens today. But that's very less opportunity today for them. बट देखना है कि क्या एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और उस एक्स्ट्रा टाइम पे क्या रणनीति अपनाती है ये वेस्ट वाइकिंग्स और धलाई एंटलर्स. ये देखिए, ये रणनीति डिफेंस को देखिए, हेड करके जगह धरी जमा दिया गोलकीपर के पास, क्योंकि वो टाइम को किसी तरह एक्सपेंड कर रहे हैं लगता है मुझे. And the penalty shootout यस is going to be dangerous for both the team, because then both the team will have to go head-on collision to each other. और And so the time is up. भाई साहब बांध लीजिए अपने दिल की धड़कनों को कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्लड प्रेशर तो अब भी होगा, बढ़ेगी आपकी बीपी. थाम लीजिए. देखिए मैदान को चूमते हुए धलाई एंटलर्स, बहुत ही बढ़िया. And so, ladies and gentlemen, it's going to be a penalty shootout here at Kumuling Stadium between the West Vikings and the Dalai Antlers. Ladies and gentlemen, all final penalty shootout. Sabo paino saimenia pia. Belaike Kirimasisa situation Sopajak or West Vikings versus Dalai Antlers on the Bakakte. Penalty shootout of Savo Paino. I was a sing Joton Nashing Lazak. They Dinini Champion Trophy Sabot Lang Tano. Belaike Nashing Sini Kazani Tahute Buksum. They Sini audiences rock. Let's cheer up for both the team, Dalai Antlers and West Vikings. अब बारी है उस क्षण की जिस क्षण में हमें पता चल जाएगा कौन है हमारे विनर, यानी कि कौन आज चैंपियंस ट्रॉफी लेकर जाएंगे. देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मेहनत के ऊपर नहीं है, अब कहीं ना कहीं आपको लक चाहिए मिथुन जी. देखिए, क्योंकि अभी जिसके हाथ में भी, जिसके पैरों में भी ये गेंद जाएगी, उनके लक के साथ पूरे टीम की लक जुड़ी हुई है. किस्मत, हम यूं तो किस्मत को मैं नहीं मानती, पर डेफिनेटली अभी आज इस क्षण में लगता है कि थोड़ा किस्मत लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टीम प्ले अभी इंडिविजुअल कुछ क्षण में बट गया है और देखना ये है कौन जीतता है. 5-5 का शॉट है, देखना ये है कि कौन जीतता है.
आपको सिर्फ 5 मौके मिलेंगे और 5 मौके दोनों को मिलेंगे। ये देखना है कि किस किस प्लेयर्स को मौका मिलते हैं। अगर मुझे लगता है जोर में अगर यहाँ पर सैमुअल है, नेथनियल है, टेम्बो क्रिजेस्ट्रॉम और बिलाश अच्छे प्लेयर है, पहले भी गोल के हैं। आज अगर उनको आप मौका देते हैं तो पहले जो मैच हुआ था इनका ग्लेडिएटर के साथ, वही रणनीति अपनाएंगे आज भी। जगतहरी जमातिया वो किस तरह की रणनीति अपनाती है ये दिखना पड़ेगा। और उनके जो गोल आकांक्षु देबर्मा, उनकी क्या रणनीति होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी। और मुझे लगता है यहां पर एरोन और डेविड हैं, अब उपन कुमार हलाम है और बिकान चकमा। ये 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको शायद मौका मिल सकता है, शायद मुझे लगता है ऐसा कुछ है। नहीं, अभी फिलहाल एक ऐसा क्षण है कि देखिए आप एरोन को देख लीजिए, डेविड को देख लीजिए, अच्छे स्ट्राइकर हैं, अच्छे से स्ट्राइक कर सकते हैं। उनकी नजरें कहीं और रहती हैं, किक कहीं और जाता है, तो ये अच्छे गोल जा सकते हैं, मिल सकते हैं। वहीं वेस्ट वाइकिंग्स में तो हमने देख ही लिया है, सेमीफाइनल में तो तोड़ के रख दिया था वेस्ट वाइकिंग्स ने। तो आपको शायद याद भी होगा क्या डांसेस थे इधर, क्या जो विनिंग डांस था वो हमने देखा था। वेस्ट वाइकिंग्स के पूरे फैंस भी इसी इंतजार में है कि वह जीतेंगे, तो डेफिनेटली आज यहाँ दमदार इंजॉयमेंट होगा। वहीं धलाई एंटलर्स कहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ शुरू मैंने कहा एरोन रियांग पहला किक करेंगे यहां पर धलाई एंटलर्स के। और यहां पर गोलकीपर आकांक्षु, क्या फायर, ओ मैन, मिस द चांस। मौके बार बार नहीं आते गुरु, एक ही बार आता है पहला मौका, वो भी एरोन रियांग। इम्पॉसिबल, कैसे हुआ ये। लाइक एरोन से एटलीस्ट मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था एरोन को चांस मिलेगा और वो ये चांस गवाएंगे नहीं जो उन्होंने गवा दिया है। सोरोमिता, आप स्लो शॉट खेल रहे हैं, आप ग्राउंड शॉट खेल रहे हैं, और इतना स्लो शॉट खेलेंगे तो उसको देख ही रहा है। बिल्कुल, ये शॉट कह सकते हैं कि बहुत इजी था पकड़ने में, गोलकीपर को बचाने में। जी, गोलकीपर को फाइंड आउट करने मत दीजिए आप। अभी देखिएगा यहाँ पर वो आए हैं, आपके नेथनियल आए हैं, इनका शॉट देखिएगा आप, क्विक एक्शन रिएक्शन होगा उनका। और कोने पे देखिए किस तरह से वो ताड़ के मारते हैं वो। बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा, नेथनियल के आंखें कहीं और रहती है, किक कहीं और रहता है। और अभी देखना ये है कि क्या जगतहरी अब अपने जगत यानी कि अपनी टीम को बचा पाएंगे। जगत, देखते हैं इस जगत के नायक को बचा पाते हैं कि नहीं। मौका 15 क्रीज स्टॉप, ओ भाई साहब गजब, हो गई तेरी बल्ले बल्ले, नचते चकते फटे पाजी, छा गए तुस्सी जगत, छा गए आज। ओ तुस्सी झप्पी पालो अपनी टीम में। यहाँ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत थी, वरना मुझे लगता है ये गोल हो जाता। कैलकुलेशन थोड़ी गलत पड़ी, मुझे ऐसा लगता है। मुझे कैलकुलेशन की बात नहीं है यहाँ पर, देखिए उनका वो राइट साइड का एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने उस तरफ टारगेट किया जिस तरफ जगत का भी टारगेट था। जी जी जी, ये तो ये मानना पड़ेगा, बट वही बात है, पोस्ट भी कहीं ना कहीं सही नहीं था। अभी आए हैं जी हाँ 14 क्विक नंबर एक्शन रिएक्शन, 14 नंबर के खिलाड़ी हमारे धलाई एंटलर्स से मनी त्रिपुरा। मनी, आपके पास अभी आपके टीम की मनी है। जी हाँ, वो मनी नहीं, नागमणि। हमारे लिए, नागों के लिए नागमणि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मनी आज वही बन के आए हैं, अपने टीम की मनी बन के, कि उनको बचाना है अपनी टीम को। ओह, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये सब? आप ऐसा गलत शॉट क्यों खेल रहे हैं? जी मतलब मैं शॉक्ड हूं, कैसे हो रहा है ये। इस क्षण में अभी आपको गोल की जरूरत है। मिथुन, मजा आ गया आज। क्या लगता है, क्या ये भी टाई होने वाला है? मुझे तो लगता है ऐसा टाई हो जाएगा। क्या पेनल्टी शूट, पेनल्टी शूट टाई, पेनल्टी शूट टाई। आप सोचिए जरा, सुनने में भी कितना अलग लग रहा है। चलिए यहां पर अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिसने उस मैच में ग्लेडिएटर के साथ बहुत ही अच्छे तगड़ा शॉट खेला था। नेथनियल नहीं थे, अब नेथनियल, अरे नेथनियल से तो बच के रहना पड़ेगा। मैं भाई साहब कर लीजिए, कसरत कर लीजिए, क्योंकि अभी जरूरत है आपको। शायद कसरत से आपकी हसरत, बचाना है।
जी हाँ, कसरत से हसरत आपकी सही हो हसरत जाए। पूरी हो जाए। नेथनियल सामने जगत, क्या नेथनियल वार्म अप के साथ आगे बढ़ते हुए क्या दाग देंगे भाई साहब? पहला पेनल्टी शूट आउट का पहला गोल। कहा था नेथनियल इजी खिलाड़ियों में से नहीं है। ये हो गया वेस्ट वाइकिंग्स का 1 और धलाई एंटलर्स का 0। तो धलाई एंटलर्स को अब चाहिए एनी हाउ एक तो चाहिए। सौरमिता यहाँ पर गोलकीपर देखिए, हर टाइम राइट साइड पे वो जंप करते हैं। इस बार भी राइट साइड जंप किया और लेफ्ट साइड बॉल चली गई। जी जी तो जी इसे क्विक एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ इस बार। जी, वो जो पहले हुआ था। जी अभी क्विक एक्शन नहीं काम में आ गया। अभी जरूरत और है। नेथनियल काबिले तारीफ। देखिए शाम हो गई है, लगभग रात की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो शायद नजरें मिले किसी सांता जो रियांग आए हैं धलाई एंटलर्स के। अच्छा, देखना है कि क्या अपने टीम को बचा पाते हैं। अभी सच में जरूरत है गोल की। सांता जो रियांग यहाँ पर आकांक्षु देवबर्मा किस तरह से रोकते देखना पड़ेगा। भाई साहब गजब शॉट, गजब कर दिया भाई साहब, थप्पी पालो। बढ़िया बढ़िया मौका यहाँ पर, इसी तरह की शॉट्स खेलना चाहिए। जबरदस्त हिट होना चाहिए आपके, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत कम है। आप 14 फुट के दूरी में हैं गोलकीपर से और आप ग्राउंड खेल रहे हैं। ये चाहिए, ये रणनीति होनी चाहिए। अभी एक एक पर देखिए, धलाई 3 किए हैं, 1 जीत। वहां पर 2 वेस्ट विकिंग्स, 1 मिला है उनको। अब आ रहे अभी हैं देखने और गोल। एक दमदार खिलाड़ी। दमदार मत बोलिए, आज कम से कम सभी दमदार हैं आज दमदार है, पर अभी फिलहाल जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं ना, उनके ऊपर पूरा टीम भरोसा करता है। आप सोचिए जरा। हाँ, चुन के भेज रहे हैं ना गोल करने के लिए। बिल्कुल। अगर यहाँ पर अभी कौन आए हो, 10 नंबर है 10 नंबर के खिलाड़ी सैमुअल डोंकर, सैमुअल डोंकर, और सैमुअल डोंकर है, अभी गोल करेंगे। भाई साहब हल्के इतना हाथों से easy। खेल दिया उसको। ये कैसे हो गया और इतना इजी शॉट? देखिए छोड़ दिया। 2-1 पर आगे बढ़ी हुए वेस्ट वाइकिंग्स। क्या अभी धलाई और एक पेनल्टी शूट आउट का गोल करेगी? देखा, आपको मैंने कहा था कि वेस्ट वाइकिंग्स पेनल्टी शूट में एटलीस्ट मिस नहीं करते हैं। आप देखिए जरा, वेस्ट वाइकिंग्स से अभी तक 2 सही गए हैं। गौतम कुमार रियांग आए हैं। गौतम क्या वो परचम गाड़ेंगे अपनी टीम के लिए? सामने आकांक्षु, सारी आकांक्षाओं पर उतरे हुए, जितनी आकांक्षा थी टीम की वही उतरी हुई है। देखना ये है कि क्या। और यहां पर देखिए, धलाई 1 वेस्ट वाइकिंग्स 2। 35 नंबर गौतम कुमार रियांग, सामने आकांक्षु। गौतम वाओ, सुपर डिलीशियस, माइंड ब्लोइंग, फेवरेट, एवरीथिंग। अमेजिंग। ये एक और एक धलाई एंटलर्स को जाता है। एंड अब अगर वेस्ट वाइकिंग्स एक गोल मिस करते हैं तो धलाई एंटलर्स को चांस रहेगा कि वे जीत जाए। तो अभी एनी हाउ वेस्ट वाइकिंग्स को मिस करना है। अगर मिस किया तो धलाई एंटलर्स के पास चांस रहेगा, और एल्स फिर से ये चलेगा टाई की तरफ। पेनल्टी शूट पे टाई। ओ माय गॉड, सुनने में भी कितना मुझे नहीं अच्छा लगता लगता है, क्योंकि देखिए एक मौका है धलाई के पास, 2 मौके हैं वेस्ट वाइकिंग्स के पास। वेस्ट वाइकिंग्स अभी उसी रणनीति के साथ अपने प्लेयर को भेजेगा वहां पर जी। और भेज भी दिया है उसको। अब जुड़ गए देखिएगा, हमारे साथ। अभी तो सब कुछ डिपेंड है उस पर जो करता धरता है जगत हरी जमातिया। वो तो गोलकीपर में है। हमारे साथ प्लेयर जुड़ गए हैं वेस्ट वाइकिंग्स के। देखना पड़ेगा जगत हरी जमातिया क्या करते हैं। 3 गोल। ये देखिए सेलिब्रेशन डांस, ये होता है सेलिब्रेशन डांस। वाओ वाओ वाओ, कंगारू डांस लाइक सेलिब्रेशन। वाह, सेलिब्रेशन। जीत मुकम्मल एक तरह से मान लीजिए, ऐसा सेलिब्रेशन। वेस्ट वाइकिंग्स के अब हो गए हैं 3, खुशी का डांस। धलाई एंटलर्स के 2। लास्ट चांस है। धलाई एंटलर्स अगर ये जीत जाती है, जीत कर सकती है। अगर मौका इसको नहीं छोड़ेंगे तो शायद उनके पास जीतने के चांसेस हैं। मेहरबान कदरदान पहलवान सब आज मैदान, सफा चट कर दीजिए सब कुछ।
11 नंबर के जर्सी डेविड रियांग, सामने आकांक्षु डेविड, क्या गोल कर पाएंगे? डेविड के पैर की ताकत अभी मालूम पड़ेगी आपको। वाओ, जस्ट ऑसम, एकदम मक्खन की तरह मारे। गोलकीपर ने हाथ तक नहीं लगाया, वो फोकस करने के पहले ही सब कुछ हो गया। मैं बोल रहा हूं ना आपको, आप सौरमिता, देखिए जरा, मक्खन। ये मौका दे दिया है उन्होंने। वेस्ट वाइकिंग्स के पास बस। चांस है, अगर वेस्ट वाइकिंग्स ये कर लेती है तो जीत जाएगी वेस्ट वाइकिंग्स, और एल्स आज वेस्ट वाइकिंग्स का एक और चुनौती की तरफ उनको बढ़ना पड़ेगा। एक और चांस है, 3-3 वेस्ट वाइकिंग्स के पास। एक ही मौका है, या जीतो या टाई की तरफ फिर से बढ़ो। सुबोन देबर्मा, वेस्ट वाइकिंग्स के सुबोन देबर्मा सामने जगह धरी। सुबोन क्या जगत को क्रॉस करवाएंगे या मौका नहीं देंगे? जीत की आखिरी गोल, अभी भी ड्रॉ। क्या ये आखिरी पैमाना सेट कर पाएगा वेस्ट वाइकिंग्स का सुबन? देखने वाली बात रहेगी। सामने जगत, सुबन तैयार, वाओ, और ये जीत तय कर ली वेस्ट वाइकिंग्स। चलिए मनाइए वो खुशी जो पहले से सेलिब्रेशन बन रहा था। फोड़िए पटाखे, जीत दियों गए की हैं। बौछार कर दीजिए आज। अभी समय है वेस्ट वाइकिंग्स आफ्टर विनिंग द ग्रैंड फिनाले। हिस्ट्री कायम किया है वेस्ट वाइकिंग्स ने। जी। एक तरह से इतिहास के पन्नों पर TTADC का सुपर फुटबॉल लीग पर इतिहास कायम कर लिया आज वेस्ट वाइकिंग्स ने, और ये बनता भी था। ये टीम उस पैमाने पर पहुंची, और अब तक जितने भी शोरूमी तक गेम हुए हैं उसमें वेस्ट वाइकिंग्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ देखिए जरा क्या बढ़िया बढ़िया विनिंग डांस यहाँ हो रहा है पूरी जगह में। अरे क्या बात, और यह बनता है पूरे मैदान का भ्रमण करते हुए वेस्ट वाइकिंग्स। वो जीत, हर्षोल्लास का माहौल पूरे मैदान पर, उनके फैंस भी। देखिए आप, जश्न की बाहर छा गई है। बिल्कुल यहाँ बड़ी बेहतरीन एक रन हो रही है, विनिंग रन जिसको कहते हैं हम। ड्रोन किस तरह से उनको फॉलो करता हुआ, देखिए कैमरे की नजर उन प्लेयर्स पर, 11 के खिलाड़ी और पूरी टीम एफर्ट किस तरह से इस मैच को पलट दिया है। जी नहीं, मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी धलाई एंटलर्स ने आज बहुत अच्छा खेला, पर वही बात है आज शायद उनका दिन नहीं था। देखिए 4-5 मैचेस में 4 मैच जीते, 1 मैच ड्रॉ। फिनाले में उनका दिन नहीं था। बिल्कुल। Soromita and Mithun, thank you so much for the Hindi commentary from the commentary box out there. Thank you so much for doing such a tremendous job. And the celebration begins from the West Vikings. I'd like to call both the commentators out here on the ground. It's the time for the West Vikings today. But yes, nevertheless, the Dalai Antlers really was a tough competition. And kudos to the team that have played so well, so beautifully, and for putting such a strong match on the ground here at Komalung Stadium. Ladies and gentlemen, the winning team, West Vikings. You can now see the celebration that began on the ground for the West Vikings. West Vikings really put up a tough competition. Dalai Antlers have won and made the victory and made history in the TS
first ever played on Komaling Stadium here this afternoon. You can see the players all set, celebrating, taking selfies around with the fan followers. And what a wonderful day it is. What a day it is, and what a celebration for the West Vikings. In just a while, that's going to be the prize distribution ceremony. Kani team ni bakakti no narano yango trophy distribution khajak nai bakago stage bakago narak phaiga ke bele kena hamnai nungui na harnai joto players no kani bakakni team no nungui na harjak nai. And so padi nungui na harnai tini sini tini ni adong sungno Sini CM Sri Purnachandra Jamatia, Honorable Sano Koihorjao, Yango prize distribution but trophy distribution in Bakago Sing Tanglai Tongo, Yango Tola Pekabeleka Hamnai. Taisa Koina Harnai Sini Honorable EM Sports ICA, Sports and Youth Affairs tai ICA department ni sini bonom ganang EM Shuhel Debermano tai abahai keno nungui na harnai sini borom ganang Sir Kamal Koloi EM Health bonom nungui na harnai oro phaina bagai tai abahai keno Borom ganang EM Cooperative Sir Ananto Deberma bonobo nungui na harnai. Taya bahai keno sini TTAADC ni CEO Sir CK Jamatiano nungui na harnai oro buskang phaina bagai. Taya bahai keno nungui na harnai borom ganang EM borom ganang zek Dolly Riang Social Welfare tai Social Education ni. Taya bahai keno nungui na harnai
Padingay, I'd like to call all the players from both the team, to please come here as we distribute the medals and the trophies. Nung nahanay joto no dang sa buskango paina bagay. Team managers kani bekhang ni no koi nahanay jani the team rono yango ti paina bagay. Kani team ni bekhak tino kani team ni borong no nungjago koi hojawo dakti ke yango paina bagay. Dolai Antlers ni players tai awa haikano West Vikings ni players no. Taukte buksong no dakti ke yango paina bagay koi hojawo. Players kani bekhakti no dakti ke paina bagay koi hojawo. West Vikings tai Dolai Antlers norni kani team ni joto players no koi hojawo yango dakti ke paina bagay. Prize distribution final ni bekhak sing thangai tongo. West Vikings ni team rongno nungjago dakti klai yango prize distribution claima bekhak dakti paina bagay. West Vikings ni player taktik prize distribution klaima khak paigang ke belai ka hamnai sing tai beshi deklai li West Vikings ni team rogang khakhay nor joto sokpai kana ne te abhai kano sini padingay tabok zoranai sini TTAADC hapang ni sini CEM Sir Purnochandra Jamatiano sing zoranai kokthai jathai ni sana bagai jotono sarai kaham tini 23rd match thungmani yagolo tini chang final match noglai kha belai kaham thunglai kha both side ne both team khelawo har jit tongnai kaplai te kechang tongnai haiphan chini bkha chang next tournament dogo chang bahke performance kaham khai thlangmanai omo chang mawan chongnai tini chini oro phai chok phaijak nirok jotono saimano North East United FC ni CEO te head coach chini oro nograi kotorungui phai chok phaijak borok thangui paikha tebu phai chok phaijak chini oro honorable EM Sport honorable EM Health honorable EM PWD tebu chini EM senior borom ganang ononto deborma tebu phai chok phaijak EM Srimati Doleriang phai chok phaijak tebu chini MLA song MDC song tebu both side ni supporter rok jo je khela nai ni hi phainai joto takhok tei bohuk chongno tung chini bubagra ni wan chok mungbai chini yot chok no sport ni bising tei bahake chung tebu boroni career no chung sinawi ma omo chung saktharui ne TTADC Super League chung sinalai kha chini bubagra ni wan chok mung omo ni bising tei chini sport je tabok thungnai rok chung live telecast be khaikha Kabangma Patar haste ni borok internationally borok rok chini je player rok ni skill borok ni performance kaham nukha feedback bu phaikha tini chini rok guest phainai rok bu haino thungmani nogoi bilai nai thokjaka borok bu sakha je without train je football thungnai rok normally tabok parawo naturally football thung phainai rok si tini asuk kurung chini ti prasa rok borok no chung training roroi ma khangke borok no tei bu kaham
opportunity roi maha ke chini bobishot chini chrai rong ni bobishot teibo kaham nai borok butini khatong jawi nai thangkha ge chung asa khlaibo phainai chalo chini jobok rok no football especially sport ni bisingte je tabok chini jobok rok drag by pheg laiwi tongmani rok chini bobishot nostong tongmani rok no busung omoni bisingte chung bahake yok lai mana omo chung mawan chok lai nai tani ke chung mentally physically jodi chung fit ungya hangke kaham ungya hangke chung je chung thancha hunai chadi chung sebani bangui chanai ba chini je generation ko tal phainai rok borono chung mentally physically bahake kaham khai ti sawe chini do phano chini ti prasano chung bahake teibu challenging tabong ni situation do chung teibu buskango agok lai mano omo chini bubagrani na hormu inge phaidi chung keplai team rong no ang congratulation khaiwe next of hai ne teibu kaham performance khaiwe keplai ungthung teibu je tini runner up ungnai rong no bu hai ne phainai chalo teibu kaham thungoi champion ungnai ni omo sak tharma thung jotonun hambai khulumkha Paringay sing tabuk sini runners up rongno sing nungin hanai players rongno runners up rongno nungin hanai yang gana ofane bagai borno sing tau medal relaine pilano nungin hanai sini MLA sir mano depur manang koina hanai yang obus kang ofane bagai sini runners up rongno medal rana bagai runner sab rong ni bukhak tike khoroksa ke phagyang ke bele ke hamnai मैं निवेदन करूंगी तालियां थोड़ी और जोर से होनी चाहिए क्योंकि धलाई एंटलर्स यू गाइस डिड सो वेल अमेजिंग बस एक शॉट थोड़े कम पड़ गए थे बट डेफिनेटली वंडरफुल जॉब वंडरफुल बहुत बहुत बधाइयां धलाई एंटलर्स को बहुत ही अच्छा गेम अब तक उनका प्रदर्शन फाइनल तक हर हार से आदमी जीतता है ये सीख आज ही लेके जा रहे हैं सब ये उनकी जीत है आज हार नहीं है क्योंकि खेल है वह हार जीत का फैसला नहीं करना चाहिए किसी को भी प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का प्रदर्शन यहाँ पर पूरे टीम के द्वारा बहुत बहुत बधाई धलाई एंटलर्स को Paringay bele bele ka hambai sini sir mano depur mano tai phai nungin halai sini buskango sir Vishwajit Koloi MLA Tripura Legislative Assembly bo sini runners up rongno tesa medal ripinai तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए विनिंग टीम अगर ताली बजा रही है तो आपकी तरफ से ताली बजनी चाहिए अमेजिंग टीम धलाई एंटलर्स यू डिड सो वेल वी आर प्राउड ऑफ यू आपने बहुत अच्छा खेला कहते हैं ना हर दिन हर किसी का नहीं होता है शायद आज का दिन आपके लिए नहीं था और यहाँ पर कांस्य पदक से सबको सम्मानित करते हुए सबको मेडल्स मिल रहे हैं कांस्य पदक और हकदार हैं ये क्योंकि इतने टीम इतने दिनों से करीबन 3-4 महीने का खेल था और ये खेल को यहाँ तक वो खींच के आए हैं जी हर किसी से कंपटीशन रहा है इनका जी भले ही उनका जो गोल था वो उस लेवल का नहीं था 1-0 से आए फाइनल हैं तक आया यही बहुत बड़ी बात है मिथुन जी देखिए जरा फाइनल तक आना ये छोटी मामूली बात नहीं है bele bele ka hambai sini sir Vishwajit no tau phai sing nungin hanai sini buskango sir Ganesh Devarma MC bobo borno medal renai
बहुत बढ़िया गोलकीपर यहाँ पर जगत, ऑसम परफॉर्मेंस। एक अच्छी सूझबूझ वाले गोलकीपर आज, उच्च कोटि के प्लेयर थे जगत। बहुत ही अच्छा टीम एफर्ट उनकी टीम धाला एंटलर्स के लिए। ये इनके टीम मैनेजर है मिस्टर चक्रवर्ती। Belai belai ke hambai sini sir Ganesh Deparma MDC no. Taya bahai kano fighting ke nungin halai na tabok sini buskango champion team no medal rana bagai nungin hanai sini Borong Ganang EM Runel Deparma PWD and D. Winning team but champion rono medal rana bagai sini sir Runel Deparma. तालियां रुकनी नहीं चाहिए गाइस। Winning team, West hip. Vikings. हिप 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 हिप। बिल्कुल जिस तरह का किरिजोस्टोमैन, तंबे, सैमुअल और डोंकोर, ये इन प्लेयरों और विलास देबर्मा, देखिए इनका जो परफॉर्मेंस था बढ़िया था। विलास देबर्मा किस तरह का उनका उच्च कोटि का प्रदर्शन, और गोल भी नाम है इनके। ठीक तरह से उनको अगर सामंजस्य रूप से अगर पासेस मिलते तो कई गोल उनके नाम होते। देखिए मैंने कहा था ये अच्छा कोऑर्डिनेशन था, ये तंबी, किरिजोस्टोम, इन सब। हेलो हेलो हेलो। जी बिल्कुल गोल्ड मेडल के हकदार हैं। जिस तरह का प्रदर्शन अब तक, किरिजोस्टोम, तंबे, we will hear gold medal और हकदार स्वर्ण पदक से सम्मानित करते हुए वेस्ट वाइकिंग्स के प्लेयर्स को यहां पर TTAADC द्वारा ये इतने दिनों का जो मैच था, करीबन 3-3.5 महीने का फुटबॉल जो दिसंबर से चलता आ रहा है और जो मार्च के अंतिम पादान पे आके खत्म हुआ है, तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था ये टीम का। वो पहली जीत जो क्वाई वॉरियर्स उसको हरा कर की थी, 1-0 की बढ़त थी उनकी। सभी टीम मेंबर्स को यहां पर गोल्ड मेडल से सम्मानित करते हुए फिर मिलेंगे आपको ट्रॉफीज। विनिंग ट्रॉफी, रनर अप ट्रॉफी, बहुत ही बढ़िया अब तक इनका। लेकिन हम उस टीम को नहीं भूल सकते जिन्होंने अच्छे प्रदर्शन किए, जैसे साउथ लायंस हुआ, गोमती ग्लैडिएटर्स, ऐसे टीम जिन्होंने काफी सारे गोल किए। आप गोमती ग्लैडिएटर को तो भूल ही नहीं सकते, 13 गोल उनके नाम है पूरे मैच में। और ऐसे टीम जो इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई, ये हर दिन हर किसी का नहीं होता है। साउथ लायंस, उसके जो गोलकीपर है सौरभ त्रिपुरा, सौरभ में था, वो कितने अच्छे प्लेयर थे। जी बिल्कुल। तो ये मैच वो टीम बाहर हो गई है। ये देखिए सेलिब्रेशन, हकदार। आज ये जीत का जो जश्न होगा, Belai belai ke hambai sini sir Runel Deparma tai awahai keno Padi tawo nungin hanai man of the match no medal rana bagai nungin hanai sini sir CEO TTAADC Komalang CK Jamatia sir no buskango phaina bagai koi hor jabo tai tinini man of the match okay
Stephen Paul Dalong, Dalai Antlers. धलाई Bono एंटलर से trophy Yafari Rezagnai, Stephen Paul Dalong, Dalai Antlers ne Bukati. Bele Bele ke Hambai. Bele Bele ke Hambai Sarno, Tayaba Haikano, highest scorer. Highest scorer. Highest scorer no trophy Yafar na bagang nungin anay sini Baronggrang EM Cooperative. Sini EM PWD na ang nungin anay. Ronel Devermano. Bas kang final bagay. Sini highest scorer no trophy rana bagay. Highest scorer rangka Manish Deverma. Sipai Jala Tigers. Boni total score 11 goals. 11 goals. Bono Yafardaka 50,000 rupees check. Tai awahai keno bono trophy Yafardaka. Belai belai ka hambai. Belai belai ka hambai Yafar nai tai yasak nai no. Paling kay tawag nungin na nai sinibus kango. Best goalkeeper no Yafar na bagay. Nungin na hanay. Sir Komal Koloy. EM Health. Bono pwede nungin na halay na bus kango. Pwede na bagay. Dangso. Tai best goalkeeper. Best goalkeeper, angka Kangshu Deverma, West Vikings. Bono Yafar Zangnai, 50,000 rupees check. Tai Logio trophy Kaisa Yafar Zangnai. Belai belai ka hambai. Pwede tawag ka sang nungin na hanay. Runners up trophy Yafar Zangnai ni thangi tongo. Abone bagang nungin hanay sini borom ganang ICA Thai Sports and Youth Affairs ni EM Sir Suhel Devermano bas kamo final bagay. Pwede kay pula oro check Yafar Zangnai runners up ni team no. और runners up ni captain no sekangi final bagay koi hor dawo और runners up trophy for the Dalai Antlers. What a wonderful day it is. Dalai Antlers, the runners up check Bonoya Farzaka 3 lakhs rupees only. Belai belai ka hambai. Fighting kay sing Tabuk trophy, champions trophy. Ladies and gentlemen, paitag bakak sang paitango. Champions trophy no sang Yafana bagay koi na na sinipus kango. Sini borom ganang CM Sir Purno Chandra Jamatia. Bas kamo final bagay koi na. Tao ba kino. Nung inahanay sini tinini champions team ni Captain Sumanto Deverma. West Vikings ni Sumanto Deverma. Bono trophy tay check Yafar Zangnai. The celebration begins, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, हमारे साथ जुड़ गए हैं चैंपियंस. जी हाँ, वेस्ट वाइकिंग्स. ये जज्बा और जुनून और जोश का
खेल क्या समाप्ति आज, और ये सेलिब्रेशन, विनिंग सेलिब्रेशन सौरभिता, और ये जोश बताता है जिस पल का इंतजार था ये हर एक टीम को, जी हाँ हर एक टीम को, पर उन टीमों में से सिर्फ 2 टीम पूरे मैचेस में अपने आप को दिखाकर, बखूबी दिखाकर आए, परफॉर्मेंस दिखाकर आए। उनमें से आज हमें मिल गए हैं हमारे चैंपियंस। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर वेस्ट वाइकिंग्स। और वो डिजर्व भी करते हैं, जिस जी। तरह का प्रदर्शन रहा अब तक, वो बहुत अच्छा डिजर्व भी करते प्रदर्शन हैं। रहा, नो डाउट। देखिए गोलकीपर का भी खिताब जो है वो उन्हीं की टीम को मिला है, आकांक्षु को, जी आकांक्षु को। तो इससे पता चलता है कि वो जो टीम एफर्ट था वो किस तरह का था मैदान पर। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक प्रदर्शन रहा है पूरे ही टूर्नामेंट में वेस्ट वाइकिंग्स के द्वारा। देखिए गेम चेंजर नाम ही पड़ गया फैंस के द्वारा, गेम चेंजर, पूरा चेंज हो जाता है गेम आखिरी कुछ मिनटों में इस टीम के द्वारा। एंड इतने बेहतरीन खिलाड़ियां इनमें, आई मस्ट से दे टोटली डिजर्व दिस पर्टिकुलर पोजीशन, दे टोटली डिजर्व दिस चैंपियंस ट्रॉफी। चलिए बहुत बहुत बधाई इनके कोच को, इनके टीम मैनेजर को, कि इनका लगन, उनका परिश्रम कहीं ना कहीं आज सफलता की कुंजी और रंग लाई है। बहुत बहुत बधाइयां वेस्ट वाइकिंग्स टीम को उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जो पूरी 20 टीमें थी वहां पर आप चुन के आए हैं और आज वो खिताब अपने नाम कर लिए हैं। तो एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयां वेस्ट वाइकिंग्स को उनकी जीत के लिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर से मुलाकात होगी अगले टूर्नामेंट में, बट इसके पहले TTADC को धन्यवाद देना चाहते हैं। इतना अच्छा इनिशिएटिव किसी भी स्पोर्ट के लिए शायद नहीं लिया गया है, फुटबॉल के लिए लिया गया। एक अच्छा हमें टूर्नामेंट मिला लेडीज एंड जेंटलमैन, जी हाँ एक ऐसा टूर्नामेंट जो ऐतिहासिक बन गया है। वेस्ट वाइकिंग्स हमारे चैंपियंस, एंड इसी के साथ मिलेंगे अगले टूर्नामेंट में अगले साल। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए एंड डेफिनेटली सपोर्ट स्पोर्ट्समैनशिप। एंजॉय टू द फुलेस्ट वी आर हैविंग